Welcome everyone to this online training on basic statistical analysis using SPSS software. SPSS, as we know, is statistical package for social science. Statistical package for social science is the basic software. बहुत ही basic software है और सबसे widely used software also and popular also because it is very convenient to use and easy to use. डेटा अपलोडिंग हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, then analysis करना हुआ, is very easy. So it is used by all the sectors in all the disciplines of social science. I was telling now that SPSS is being used by the students of history, political science, sociology, anthropology, psychology. Everyone is using SPSS. So being whoever our discipline, knowing SPSS is basic स्किल. और जैसे मैं बोल रहा था, बेसिक स्किल हम जब सीखेंगे, इट विल बी यूजफुल फॉर अस to go to the advanced level, and we are planning for advanced level also, so that it will the learning will be continued. So this course, as I said, will be learning basics of SPSS, how to upload data, how to transform the data. Then in second class we'll go to correlation, partial correlation. Then also we will go for chi-square. Then next class will be going for t-test, both paired and non-paired. And the last class will be on analysis of variance, ANOVA. So these are the basic things. After this series, we are coming up with the multiple advanced courses. So any question during this time, you is most welcome. और कोई भी question है, please feel free. And I guess, and I welcome everyone. And on behalf of our participants and on behalf of Bharti Publication, I welcome our resource person of this course, Salu Batraji. Salu My pleasure, Batraji, sir. My pleasure. basically head of the Department of Economics, and says teaching economics in a very good manner, and there's good amount of publications, very keen interest in research. She has very good research aptitude, and obviously I'm sure the course will be very useful for all of us. And I'll only request everyone not to miss any class, क्योंकि continuous link रहेगा. If suppose आप कोई भी class miss कर देते हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है. So you have given your time, you have given your energy to ensure that you learn this from this course to the maximum use. So be present in all 4 courses, ask maximum questions, ask maximum doubts, and clear all the things, and learn basic statistical analysis and use them in your research papers, analysis, be whatever. So with these words, I welcome everyone, and over to Saluji. Thank you, sir. Thank you very much. As sir already told you that we are going to start with basic statistics using SPSS. This workshop will be for basic statistics. We will perform all the basic statistical techniques like correlation, chi-square, and no doubt inferential statistics also. But that inferential statistics will also be basic inferential statistics. We will cover hypothesis testing, t-test, and ANOVA and chi-square test. And these all parts will be covered in this. And today I will start from the very beginning, that is, what is SPSS, how we open SPSS, how we prepare data files in SPSS, and how we screen or explore data for further analysis. This will be covered in today's lecture. And मुझे थोड़ा participants के बारे में अगर पता चल जाए, because it should be an interactive session, कि मुझे ये पता चलता जाए कि आपको कितना clear हो रहा है. Yes, participants, I'll request everyone to give basic introduction, and
your level of SPSS, क्योंकि SPSS आपको पता है किया है नहीं के, इससे उनको Definitely. क्लियर हो जाएगा. One by one, you can introduce yourself and say your proficiency with SPSS and expectation also you can say. Ma'am, good afternoon. Good afternoon. This is Anshu Mala, and this is for the first time I'll be doing this SPSS workshop. Okay. Before it, I haven't used it. I have done the research work, but with the help of Excel only, actually. Okay. And you are basically from economics background or? I'm mathematics, MSc Mathematics, basically. Okay. And then I did my MA, MPhil and PhD in economics. So working as a faculty in a government college right now. Okay, from Delhi on. From Durg, Chhattisgarh, ma'am. Durg, Okay, Chhattisgarh. Okay. And next, Apurva. Yes, I am Apurva Singh. I am from Ajmer, Rajasthan, and I teach economics, class 11th, 12th, PGT economics at Mayo College. Mayo College is a school till 12th class only, but nowadays we are suffering from holidays. Atmosphere is just like a holidays only. And I had done economics honors, and after MA in economics, and when I used to in my college economics honors, I read about SPSS. It's called computer application was the paper. So I knew little bit about SPSS, but in year 2008, I read that time. I studied there, but now I want to learn many new things in SPSS. और काफी लंबा समय हो गया तो एक नई चीज की इच्छा हुई सीखने की, और काफी पहले पढ़ा था, अब ओपन करना भी भूल गए, तो प्रदीप सर से लिया पूरा की मैंने कहा आप नए अपडेट वर्जन आ गए हैं, आप मेरे को भेजिए. तो इच्छा हुई नई चीज सीखने की. और एक रिक्वेस्ट है आप सभी से जो जानते हैं इतना अच्छा, इकोनोमेट्रिक्स वगैरह भी शुरू करिएगा, क्योंकि इसके फीचर्स अवेलेबल नहीं है. ये हाँ नहीं, नो डाउट इकोनोमेट्रिक्स ईव्यूज में हम ज्यादा चलते हैं, इसमें नहीं, एसपीएसएस में उतना नहीं है. जितनी भी टाइम सीरीज एनालिसिस है दैट इज बेसिकली ईव्यूज बेसिक सॉफ्टवेयर है उसके लिए. तो ये पहले हम वर्कशॉप कर लें, उसके बाद एडवांस लेवल पे जाके फिर हम ईव्यूज पे डेफिनेटली शिफ्ट करेंगे. ये मेरा इंट्रोडक्शन है, सिंपल सा है. वेरी नाइस इंट्रोडक्शन सर. एंड इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड का हूं, अच्छी इकोनॉमिक्स आती है, लेकिन मैथमेटिकल और ये सीखने की इच्छा है. नेक्स्ट सृजा. Madhu. Hello, ma'am. I am Madhuprata Rising. I teach in National Law University, Cuttack. I have done my MPhil in economics, and currently I am doing my PhD in economics as well. And SPS is long back in 2008. I had done it, but then I have forgotten everything about SPSS. So this is my first experience with SPSS, and I would like to. I know certain concepts, but I need to recall all those things. So this is refresh that. Nice, yeah. Going to be a very nice experience for me, in which I can refresh all the terms and terminologies, the concepts. And thank you for taking this session, and all thanks to Pradeep as well. Okay. So we hopefully it will definitely. Yeah, I will be continuously disturbing you by asking my doubts. Sure. That will be. In fact, I want this. It should be an interactive session. Yeah. And Srija? I'm Srija from Kerala, working as an assistant professor in Department of Development Studies, Malayalam University, Kerala. I am also doing my PhD in economics. I am a beginner in SPSS. Okay. And Omkarji? Biman Kumar ji? Hello, madam. Yes, sir. Hello. This is Biman Kumar Nath. Actually, I belong to Assam, northeast of Assam. Hope you know. I am teaching in a state private university in Assam. I did my MA in economics from Rajiv Gandhi Central University and also did PhD from there. Presently, I am teaching at the master's level and research level. Although I am very much accustomed with SPSS for a long period of time, but sometimes what happens, we know many things of advanced SPSS, like suppose doing some logistic regression and probit and all those things. But I get confused with the simple statistics like t-test, ANOVA and all these things. Okay. With these we can do many of our research, I think. Definitely. That's why I think beyond going to this one advanced level, I think basic is main thing.
So I attended this, and I am follower of Professor Panda sir in Facebook. From there, I get a connection, and he's also interested in some youth development and all those things. I'm also interested there. So I hope I will be enjoying this workshop. Thank you, ma'am. Hope so, sir. Hope so. Thank you. Next, any other participant? Yes, I guess two more. Dr. Ansumala said no? And one more just joined. One person. Yeah. Yeah, it's done. Srinivas ji just joined. Yeah. Srinivas ji, your introduction, please. Yeah, please. I'm Dr. Srinivas Lu. I'm working as a urban economist. Sir, I think there is some internet connection problem. Yeah. From Kurnool, Andhra Pradesh. Andhra Pradesh. I did my I can say because I guess economics. And for the last I think it's their network problem. Network problem. Just I want to. I can say because I know him quite well. Not audible. Okay. It's breaking. Yes, Srinivas is breaking. Voice is breaking. Sir, my point is that whether he will be able to listen to us and otherwise he can refer to recording also, na? Recording also. Right, sir. Basically, he's an urban economist. He's my colleague at my old organization. He is interested in how he can use this statistical analysis for analyzing various projects in his field. That's why he has joined. Yeah. Yes, madam. I think the introduction of each and every participant we have. Yes. Okay. Should we start now? Yes. Okay. Go ahead. First of all, what is SPSS? It is Statistical Package for Social Sciences. Basically, what's the purpose of SPSS? That if there is huge data, it's difficult to do any calculation manually, and we use SPSS for the quick calculations. Even graphs, tables that can be formed in a very good manner, that is presentation of data that can be done, and analysis of data can be done. We all are from the economics background, and we know that what the importance of analysis of data is. कि आपने अगर कोई भी डाटा आपके पास आ गया, अगर उस पर सही टेक्निक, सही तरह से उसको आपने डाटा को एनालाइज नहीं किया, तो आपका जो है कोई भी रिजल्ट, कोई भी आपकी जो है पॉलिसी मेकिंग जो है वो सही नहीं जाएगी. तो एनालिसिस ऑफ डाटा जितना क्विक और जितना जो है एक्यूरेसी से एसपीएसएस में हो सकता है, वो आप मैनुअली या किसी और तरह से अगर एक्सेल पे करते हैं तो दैट टेक मोर टाइम, और आपको जो है उसमें फॉर्मूलाज वगैरह खुद टाइप करने पड़ते हैं. इसमें काफ़ी कुछ जो है वो आपके पास जो है पूरा का पूरा ऑलरेडी जो है इसमें इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है, इनबिल्ट पैकेज है, जिसमें आपने सिर्फ टेक्निक लगानी होती है. नो डाउट रिपोर्ट राइटिंग और रिसर्च राइटिंग में तो आपका ये काम फर्दर आएगा ही. अब एसपीएसएस जो है इसमें बेसिकली दो विंडोज इसमें आती हैं. एक आपकी जो है डाटा एडिटर विंडो होती है और एक आउटपुट व्यूअर विंडो होती है. And data editor window, it has two parts, data view and variable view. I am opening the SPSS. Just give me a minute. आप सबके पास SPSS installed है? Dear participants. कुछ लोगों के पास है, मुझे जितना पता है. यस मैडम, है इंस्टॉल है हमारे पास. हाँ, पर SPSS आप इंस्टॉल कर लो. SPSS 20 को फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड भी कर सकते हो. इसकी ये मिल जाता है. हाँ, इजीली मिल जाता है. हाँ. तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. एंड विल सेंड आल्सो, जिनके पास नहीं है आई विल सेंड. ओके. और ये अगर आप डाउनलोड कर लोगे तो इस पे प्रैक्टिस आप साथ में कर पाओगे. ये जरूरी है. जब मैं करवा रही हूँ तो आप अगर प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे तो उसका फिर
नहीं उतना इफेक्ट पड़ेगा। Basically there are two views, data view and variable view. स्क्रीन विजिबल है? हाँ विजिबल है। क्लियर हो रहा है? ये वेरिएबल व्यू। अब ये वेरिएबल व्यू क्या है? इसमें देखिए आप नेम है, टाइप है, विड्थ है, डेसिमल, लेबल, वैल्यूज, ये सारे आपने फिल करने हैं। नाउ व्हाट इज नेम? नेम इज इनपुट नेम ऑफ ए वेरिएबल। आई हैव ए क्वेश्चन हियर, let this be the questionnaire. This is a sample questionnaire. You have to fill name, occupation, your occupation, gender, age, income, and this is your perception, opinion on the Likert scale. Now suppose I take the first question, that is name, and you have to fill it in SPSS. How will you fill it? Name. Let it be name. Name of the participant. It can be like that also. But in this column, you can't give the space. ये इसमें स्पेस नहीं दे सकते आप। इसके कुछ रूल्स हैं, सेट रूल्स जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। वो सेट रूल्स ये हैं। सिंबल्स जो हैं दैट शुड बी लाइक प्लस, हाइफन, अंडरस्कोर, ये आप नहीं यूज कर सकते इसमें। स्पेस यू कांट यूज व्हाइल नेमिंग ए वेरिएबल। मस्ट स्टार्ट विद ए लेटर, आप न्यूमेरिक से स्टार्ट नहीं कर सकते हो। फुल स्टॉप से एंड नहीं कर सकते। इट शुड बी यूनिक, कि आपका जो है नेम ये ना हो कि लेट इट बी आप कोई कॉमन वर्ड कहीं पे आप यूनिवर्सल वर्ड यूज कर रहे हो उसको यहाँ पे लेना है, वो नहीं आपने लेना है इसको। मैक्सिमम लेंथ जो है इट शुड बी 64 बाइट्स एंड केस सेंसिटिव ये नहीं होता है, आप किसी भी केस में इसको लिख सकते हो। तो ये आपने सबसे पहले इसको जो है नेम हमने दे दिया, नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट। और ये आप नेम जो है, अब नेक्स्ट इसकी टाइप। टाइप जो है वो कई तरह के आपके आ सकते हैं। स्ट्रिंग है आपका वेरिएबल। स्ट्रिंग होता है जब उसमें आप सिर्फ जो है अल्फाबेट्स की फॉर्म में दे रहे हो, या अल्फाबेट्स या कोई आपने उसमें जो है न्यूमेरिक वैल्यू भी दे दी तो वो आप ले सकते हो, पर उस पर कैलकुलेशंस नहीं हो सकती। आप स्ट्रिंग अगर आपने उसको मेंशन कर दिया तो उस पर कैलकुलेशंस नहीं हो सकती। ठीक है, आपने इसमें आप नेम है तो नेम विल बी स्ट्रिंग वेरिएबल, कि आप जो है इसमें नेम पे कैलकुलेशंस आपने नहीं करनी है, सो इट विल बी स्ट्रिंग वेरिएबल। तो अब मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग पे इसको क्लिक कर दिया। नाउ इट इज विड्थ, कि आप कितने इसमें जो है कैरेक्टर्स देना चाहते हो। तो नेम कैन बी ऑफ 15 कैरेक्टर्स ऑल्सो, तो मैंने उसमें 15 दे दिया। डेसिमल ये ऑटोमेटिकली उसको जो है डिसेबल कर रहा है, बिकॉज इट इज नॉट ए न्यूमेरिक वैल्यू। तो स्ट्रिंग है तो उसमें डेसिमल नहीं होगा। अब लेबल क्या है? ये जो नेम है ना, ये आपका डाटा व्यू में आएगा। ये नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट आ गया ना इनपुट फाइल में। जो आउटपुट फाइल में आप वेरिएबल लेना चाहते हो, वेरिएबल का नाम लेना चाहते हो, वो आप यहाँ पे दे सकते हो। क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि नेम में आप स्पेस नहीं दे सकते, तो वो आप कहाँ पे दोगे? यहाँ पे आप जैसे आउटपुट फाइल में चाहते हो वैसे आप दे सकते हो। नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट, राइट। वैल्यूज ये आपने कोई डिफाइन नहीं करनी है। आपका जैसे जैसे क्वेश्चनियर आता जाएगा वो वैल्यू आप वही नाम उसमें डाटा व्यू में फिल करते जाओगे। और मिसिंग अभी के लिए आपकी नन है, कोई भी मिसिंग हम नहीं लेके चल रहे हैं। और ये कॉलम की विड्थ है आपकी, तो ये जनरली 8 पे फिक्स्ड होती है। ये आप चेंज कर सकते हो अगर चेंज करना चाहते हो। जैसे ये है, लेट इट बी, मैंने चेंज किया तो ये 19 हो गई। ठीक है, कि ये देखो फर्क क्या है विड्थ और कॉलम्स में। विड्थ है कि आपने जितने करेक्टर्स उसमें देने हैं। लेट इट बी नाम है शालू बत्रा, तो शालू बत्रा में कितने करेक्टर्स आ रहे हैं? देखिए 6 ये हो गए
7th स्पेस का, और ये कितने कैरेक्टर्स हो गए, ये 6 and 6 12 हो गए, तो 12 की विड्थ उसमें चाहिए। अगर आप यहाँ पे कॉलम 8 रखते हो तो वहां पे 8 कैरेक्टर्स विजिबल होंगे। यहाँ पे आप 15 एंटर कर सकते हो, लेकिन वहां पे विजिबल कितने होंगे, सिर्फ 8। क्लियर हुई बात? हाँ जी, क्लियर है इतना? यस मैडम, क्लियर है। ठीक है, ये वेरिएबल व्यू जैसे हमने यहाँ पे कॉलम जो है कम कर दिया मैंने, तो ये विजिबल उतने कैरेक्टर्स होंगे जितना मैंने उसका कॉलम विड्थ रख दी है। ठीक है, और अगर हम पूरा इसको जो है चाहते हैं विजिबल हो तो उस हमने कॉलम विड्थ बढ़ा देगी। देन जो आपके स्ट्रिंग है वो सिर्फ लेफ्ट अलाइंड होते हैं, न्यूमेरिक हम राइट अलाइंड लेते हैं, और मेजर यहाँ पे जो है वो आपकी नॉमिनल आएगी। अब देखो 4 टाइप्स की मेजर्स होती हैं। ये आपका पहले नेमिंग द वेरिएबल हमने कर लिया, उसके बाद ये टाइप्स ऑफ डाटा 4 टाइप्स की होती हैं जो आपकी डाटा होते हैं। फर्स्ट वन इज न्यूमेरिक, स्ट्रिंग, डेट, करेंसी, जो मैंने आपको स्ट्रिंग ऑप्ट करवा दिया वहां पे। अब मेजर्स ऑफ डाटा में क्या है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। व्हाट इज नॉमिनल डाटा? Whether anybody knows? नॉमिनल डाटा क्या होता है, किसी को पता है? Whether you ever heard these terms or should I explain? पार्टिसिपेंट सुन पा रहे? Whether my voice is audible? हाँ, इट्स ऑडिबल, मैं तो सुन पा रहा हूँ। Please explain it, ma'am, please. या Okay. एक्सप्लेन कर दीजिए। First is nominal. What does nominal data means? When you can't perform any calculations there. It is just the naming of things. Like I have simply taken the name, that is nominal data. Suppose I take your Aadhaar number. That is not nominal data, that is in numeric terms. Numeric terms में होता है ना आपका आधार कार्ड, but we can't perform any calculations there because it is unique identity given to you. So it is a nominal data. When any data where calculations cannot be performed, it is just the name or ID of any person, then it is called as nominal data. Suppose I take the gender of a person, whether the person is male or female. Male or female, it is just the characteristics of a person. I can't further perform any calculations on male or female collection of data. Clear हुई बात? Nominal clear हो गया? Yes madam, clear होगा। Yes madam. Then next is ordinal data. Now what does ordinal data means? Ordinal data, when you can compare the data. Suppose I take your perception regarding the brand of any cloth or brand of toothpaste, and I take your perception in form of ranks. You have to rank which toothpaste is the best one, then next one, then next one, then next one. This is called as ordinal data. कि आपका जो डाटा है that is in the form of ranking, कि आप कंपेयर कर रहे हो कि कौन सा बेस्ट है, कौन सा उसके बाद आ रहा है, कौन सा उसके बाद है। जैसे लेट इट बी, मैंने जो है हंगर इंडेक्स की रैंकिंग ले ली, या फिर मैंने जीडीपी की रैंकिंग ले ली, तो उसमें फर्स्ट नंबर पे कंट्री ये है, सेकंड पे ये है, थर्ड पे ये है, ये ऑर्डिनल डाटा है। ठीक है, मुझे ये नहीं पता कि उनकी जीडीपी कितनी है, मुझे ये पता है कि रैंकिंग क्या है। जैसे HDI आता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसमें रैंकिंग क्या आ रही है, दैट इज ऑर्डिनल डाटा। क्लियर? हाँ, जितना क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देन ये दोनों जो है नॉमिनल एज वेल एज ऑर्डिनल, ये दोनों, इनको हम कहते हैं नॉन मीट्रिक डाटा। दिस इज नॉन मीट्रिक डाटा। एंड इंटरवल एंड रेशियो, दिस इज मीट्रिक डाटा। नाउ व्हाट इज इंटरवल डाटा एंड रेशियो डाटा? Interval data is when you use data like height in form of 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, इस तरह से आपने डाटा लिया, तो it is interval data. बेसिकली इसमें क्या होता है, इंटरवल डाटा पे आप कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हो। जैसे अगर आपने कोरिलेशन निकालनी है, टी टेस्ट लगाना है,
एफ टेस्ट लगाना है, दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन मीट्रिक डाटा. इंटरवल डाटा पे हो सकता है, ऑर्डिनल डाटा पे भी कोरिलेशन लग जाती है. स्पेयर्समैन रैंक कोरिलेशन ऑर्डिनल डाटा पे भी लग जाती है. इंटरवल और रेशियो पे आप किसी भी तरह की जो है फर्दर प्रोसेसिंग जो है टेक्निक्स जो है वो आप लगा सकते हो. अब इंटरवल और रेशियो में फर्क क्या होता है दोनों में, कि इंटरवल में आपकी जो है जो इंटरवल्स सेम होते हैं, जैसे मैंने कहा 0 to 10, 10 to 20, पर जो आपकी रेशियोज हैं वो सेम नहीं आती हैं. इसमें जो है आपका ओरिजिन जो है दैट इज आर्बिट्रेरी ओरिजिन, एक्चुअल ओरिजिन नहीं होता है. 0 के अराउंड सारी वैल्यूज आपकी नहीं होती हैं. आप एक्चुअल ओरिजिन मैथमेटिक्स में जब चलते हैं तो 0 लेके चलते हैं ना, तो इसमें आपकी एक्चुअल ओरिजिन 0 नहीं होता है, इसमें आपका आर्बिट्रेरी ओरिजिन होता है. अगर लेट मी सिंप्लीफाई इट, अगर मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताऊं तो आप ये एग्जांपल लीजिए कि अगर लेट इट बी, मैं कहती हूँ कि 0 डिग्री सेल्सियस जो है आपका टेम्परेचर है, ठीक है, कहीं किसी भी जगह पे 0 डिग्री सेल्सियस है, तो वेदर actually it is 0 degree Celsius, that means it is 0 degree temperature, that is there is no temperature. Can I take temperature as 0? 0 degree Celsius को क्या हम 0 temperature ले सकते हैं? No, ma'am. Why not? That is showing the temperature at 0 degree centigrade actually. Yes, and actually it is 32 degree Fahrenheit also. Yeah, right? 32 degree Fahrenheit, right, ma'am. Right, that means it is 32 degree Fahrenheit, that means it is not zero temperature. That means I have taken 0 degree Celsius, that is 0, their 0 is arbitrary origin. I have taken 32 degree Fahrenheit as a 0 degree Celsius. Clear? कि इंटरवल में जो है जो आपका 0 जो आर्बिट्रेरी ओरिजिन है कि मैंने उसको 0 अज्यूम कर लिया है, बट एक्चुअली इट इज नॉट 0. इट इज नॉट, बेसिकली उसकी वैल्यू 0 नहीं होती. जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर हम ये लें, आज 2020 चल रहा है, तो व्हाट डज इट मीन कि 2020 ईयर्स हुए हैं, पास हुए, टोटल इतना है कि हमारा टाइम 2020 पास हुआ है. अभी तक 2020 ईयर्स हमने पास किए हैं. इज whether it means that if it will be interactive then it will be more knowledgeable, because अगर आप इंटरेक्ट करोगे ना उसमें आपको भी क्लैरिटी ज्यादा होगी और मुझे भी पता चलेगा कि आपको क्लियर हो रही हैं चीजें. देखो अगर मैं 2020 आज का लेती हूँ एनुअल टाइम, तो इट डजंट मीन कि अभी तक 2020 ईयर्स पास आउट हुए हैं. क्यों? क्योंकि आपने एडी और बीसी सुना है. एडी क्या है? अभी वाला टाइम जो चल रहा है. हाँ. Okay? और इसका मतलब जो 2020 हम चला है दैट इज एडी, मतलब ये आफ्टर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर डेथ थी उसका हम लेते हैं. दैट मीन्स हमने जो क्राइस्ट टाइम पीरियड है उसको 0 लिया है. उससे पहले भी जो है आपका ये वर्ड एग्जिस्ट कर रहा था, उससे पहले भी जो है आपकी लाइफ चल रही थी, अर्थ पे एग्जिस्टेंस थी, टाइम था, लेकिन हमने उसको बिफोर क्राइस्ट में क्लासिफाई कर दिया. आर्बिट्रेरी ओरिजिन क्राइस्ट का पीरियड ले लिया. क्लियर हुई बात? ठीक है. सो इट इज इंटरवल डाटा. एंड व्हाट इज रेशियो डाटा? रेशियो डाटा इज एब्सोल्यूट डाटा वेयर we can perform any calculations. Here actual origin is 0. Suppose I take any value, let it be height of a person 5 feet 5 inches, then it is ratio data. Suppose I take weight of a person, let it be 58 kg, then it is a ratio data. क्योंकि 0 kg weight का मतलब है बिल्कुल weight नहीं है. 0 means 0 here. क्लियर हो गई बात? Yes. हाँ जी, क्लियर है इतना? यस मैम. मैम रेशियो का थोड़ा सा प्लीज एक्सप्लेन कर लीजिए, क्योंकि अगर इंटरवल हम मेजर कर सकते हैं तो वेट भी तो हम मेजर कर सकते हैं ना. बिल्कुल मेजर कर सकते हैं वेट. तो अगर वेट का बात आएगा एज अ डेटा, कैन वी राइट द टाइप ऑफ डेटा एज इंटरवल एज वेल? लेट मी फर्दर इलेबोरेट इट. आपके पास वेट आया, एक पर्सन का वेट मान लो आ गया 65 kg. ठीक है. If it is 65 kg, it is ratio data. Suppose I give the interval that give you the option that what's your weight. A person write down that it is in between 60 to 68 kg or 60 to 70 kg. Then it is interval data, because I don't know the exact weight. Okay. What the exact weight of a person is. Clear? अच्छा. Okay.
ठीक है, कि रेशियो दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इंटरवल एनी टाइम, बट इंटरवल कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू रेशियो. जी. Clear? Conversion can be possible in reverse manner. That is, ratio can be converted into interval. Ratio can be converted into ordinal. Ratio can be converted into nominal. But reverse is not possible. Nominal cannot be converted into ordinal. Nominal cannot be converted into interval. Nominal cannot be converted into ratio. Ordinal cannot be converted into interval. Ordinal cannot be converted into ratio. Interval cannot be converted into ratio. ओके. आपके पास रैंक्स दिए हैं. मैं आपको कह दूं कि यूएस की इनकम ज्यादा है एज कंपेयर टू इंडिया जीडीपी. ठीक है, अब मैं आपको कहूंगी एग्जैक्ट इनकम बताओ यूएस और इंडिया की, बता सकते हो? नहीं. तो ऑर्डिनल दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू रेशियो. या. और अगर मैं आपको कहूं कि ये इनकम जो है यूएस की है, इतनी इनकम इंडिया की है, और आप इसको ऑर्डिनल में कन्वर्ट करो, यू कैन. या. Definitely. Yeah, got it. Ratio can be converted into ordinal. Similarly, ratio can be converted into any scale. Interval can be converted into ordinal or nominal. Okay. Clear? जी, I'm clear. Clear. Then, now coming to SPSS. So now it is clear that it is nominal data because it is a name of a person. Clear? Then next one is questionnaire. Come next question let me. Next is tick one of the following. Whether you are in job, whether you are in self-employed, or whether you are retired. Now I have to give this question. Fill this question in SPSS. Occupation. Here I am writing down occupation. Here label I take occupation of participant. This all includes data preparation. We are preparing data for further analysis. Now, occupation of participant. Now, there were three categories: job, self-employed, and retired. What we have given, right? Now, if I have to give these three categories, then let it be I code it. Code समझती हो ना कि उसको कोई numeric value दे दी. Let job is 1, self-employed is 2, and retired is 3. Now I give coding here. If I give coding, then we will assign coding in this values. That is 1 for job. Okay. Right? Add. Then 2 for Self-employed. Then 3 for retired. Right? Add. Okay. ठीक है. अब decimals इसमें चाहिए नहीं तो you can define it as 0. And आपकी width जो है ये आपकी, क्योंकि मैंने 1, 2, 3 ही वैल्यू दी है, तो you can take only 2 or 3 values, whatever you like. And it is a numeric data, so it will be right aligned. And measure, what will we measure? Anybody? मैंने अभी बताया. It will be definitely it will be nominal. Very good. It is nominal. Then next, what is the next question here? Gender. Now, if I have to fill the gender, then again I let it be I code it male as 1, female as 2. Then gender. Again, it is a numeric data. Width will be, again, because you have to give coding, you can define it at 2 decimals. Decimal 0 नहीं किया तो that's why उसने इसको 2 नहीं लिया उस टाइम पे. 2. Then gender of participant. Then again values 1 for male and add, then 2 for
Female. female. At. Then okay, right? Then it is again right aligned, and measure is Nominal again. Again nominal. Very good. Nominal again. Right, nominal again. Then next one is you have to give the age. Then next question will be for the age. Age, it is numeric data. Then age, it can be, let it be up to 4 digits or 5 digits. We take the decimals also here. And age of participant. Then values. Here we will not give any value. Whatever the age, that is open-ended question. Any participant can give his actual age. We will fill that here. Now what will be the measure? It will be taking a scale, ma'am. Interval. Scale. It is age. Interval. Actually, it is no. It is ratio. I hadn't given any interval data, na? Okay, I have given open-ended. What the actual age of a person, that will fill that. Person will fill that. It is a ratio. And for ratio we fill scale. Right? Clear? Okay, ma'am. Then next is similarly income. Income is also ratio data. We can take it in the similar manner as we have taken age, income. Data is numeric. Same जो है इसका numeric की form में आपका चलेगा. और यहाँ पे income of participant. Then right aligned, and it is scale variable, right? Then next one is, it is on Likert scale. Here again I define, let it be highly agrees 1. Agrees 2. Then neutral is 3. Then disagrees, let it be 4. Then highly disagrees 5. Right? Clear? Generally ये I think preparation, data preparation through SPSS नहीं है, लेकिन जब आप coding देते हो, I think you all know कि जब हमारे positive statements होती हैं तो उसमें जो कोडिंग आपकी जाती है, जो नेगेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं उसमें कोडिंग रिवर्स हो जाती है. जैसे आई फील वेरी सेटिस्फाइड व्हेन आई थिंक अबाउट माय जॉब, तो इसमें आप सेटिस्फेक्शन आपका पॉजिटिव जो है परसेप्शन है, पॉजिटिव ओपिनियन है. तो इसको अगर आप इस तरह से कोडिंग दे रहे हो, तो अगर लेट इट बी कोई क्वेश्चन आपका नेगेटिव टर्म्स में है कि आपका जो है आप ये कहते हो कि आई एम सर्चिंग अदर्स जॉब, that means you are not satisfied with your current job, तो उसकी कोडिंग आप रिवर्स कर देते हो कि हाईली एग्री को 5 दोगे, एग्री को 4, देन 3, 2, 1, इस तरह से. Right. ठीक है. और ये आपके, क्योंकि इसमें आई हैव अ सेंस ऑफ लॉयल्टी टू माय वर्क ऑर्गेनाइजेशन, अगेन पॉजिटिव क्वेश्चन, द प्लेस आई वर्क in is designed to help me to do my job better. Again, positive question. I am willing to put in a great deal of effort beyond the normality, beyond the normally expected to help my work organization be successful. Again, positive question. I have no interest in searching for job in next year. Again, positive question. अगर इसका इस तरह से आ जाता कि I am interested in searching other jobs, ठीक है, तो ये आपका नेगेटिव बन जाता. फिर आप इसकी कोडिंग 5, 4, 3, 2, 1 की फॉर्म में देते हैं. क्लियर? मैम एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट कीजिएगा. हाँ जी, जो आपकी कोडिंग है, कोडिंग तो समझ के ना कि कैसे देनी है. ठीक है, ये 1 है, ये आपकी 2 है, ये आपने इसको 3 दे दी, इसको आपने 4 दे दी, देन इसको आपने 5 दे दी. जब आपका इस तरह से है कि आई एम कोई भी क्वेश्चनर है, उसमें कई तरह के क्वेश्चंस आते हैं ना, वो सेट ऑफ क्वेश्चंस होता है. उसमें हो सकता है कुछ आपकी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हों, कुछ आपकी नेगेटिव स्टेटमेंट्स हों. पॉसिबिलिटी है ना, जब क्वेश्चनर बन के आ रहा है तो एक कोई भी क्राइटेरिया, कोई भी फिनोमिनन जिसको वो मेजर कर रहा है,
it is possible that your questions, they are positively related to that phenomenon or they are negatively related to that phenomenon. If your questions are positively related to that phenomenon, then then coding will be like as I have given, let it be 1, 2, 3, 4, 5. But if these are negatively related to phenomenon, then coding will be reverse coding. It is 5, 4, 3, 2, 1. Otherwise, your measurement of whole phenomenon, that will not be accurate. कई बार क्या होता है कि हमने सम अप करके या मीन लेके एक फिनोमिनन को मेजर करना होता है, तो अगर आप रिवर्स क्वेश्चन जो नेगेटिव क्वेश्चंस हैं उसमें रिवर्स कोडिंग नहीं दोगे तो आपके जो है ना मीन एक्यूरेट चीज नहीं डिपिक्ट कर पाएंगे. अच्छा, ठीक है. क्योंकि क्यों नहीं डिपिक्ट कर पाएंगे, देखो एक बड़ी सिंपल सी बात है. अगर किसी एक पर्सन का ओपिनियन ले रही हूँ, वो कहता है आई एम सेटिस्फाइड विद माय जॉब, ठीक है. अगर ये उसका हाईली एग्री में जा रहा है तो उसका जो है ऑब्वियस है कि आई एम इंटरेस्टेड इन सर्चिंग फॉर जॉब इन द नेक्स्ट ईयर, ये हाईली डिसएग्री में जाना चाहिए. जी जी, ठीक है. तो उसके लिए कोडिंग रिवर्स जाएगी ना, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से जाएगी. अगर वो हाईली एग्री में इसमें भी कह देता है तो वो कॉन्ट्राडिक्टरी होगी दो स्टेटमेंट्स आपस में. अच्छा, अगर मैं उसमें कोडिंग 1 दे देती हूँ तो वो आपकी कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएंगी स्टेटमेंट्स, बोर्ड्स आपके मैच नहीं करेंगे. जी जी, राइट. ठीक है. दैट्स व्हाई वी गिव रिवर्स कोडिंग इन दैट. ओके, हाँ, क्लियर. जी. हाँ जी. अब ये नेक्स्ट आपका था स्टेटमेंट थी आई फील वेरी सेटिस्फाइड व्हेन आई थिंक अबाउट माय जॉब. तो ये मैं एक आपको फिल करके दिखा देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम कैसे इसको करते हैं. ये आपने लेबल में दे दिया और ये वेरिएबल जो है सेटिस्फाइड विद जॉब में लिख देती हूँ. और इसके जो है आपने वैल्यूज देनी है. वैल्यूज कैसे देनी है, अगेन वही 1 फॉर हाईली एग्री, 2 फॉर हाईली एग्री, 2 फॉर एग्री, 3 फॉर न्यूट्रल, 4 फॉर disagree, 5 for highly disagree. Right? At now here scale, it is ordinal. Ordinal scale. क्यों ordinal है? रैंकिंग है. रैंकिंग है. हाईली एग्री है या एग्री है, रैंकिंग है. रैंकिंग भी हो, कंपेयर भी कर रहे हैं. हाँ, कंपेयर कर रही हूँ, वही है. कंपैरिजन जहाँ भी आ गया वो ऑर्डिनल है. ऑर्डिनल. ठीक है, क्लियर होगी बात. ठीक है. इसी तरह से बाकी आपने ले लेने हैं. अभी के लिए मैं बाकी यहाँ पे नहीं लिख रही. अब यहाँ पे आ जाइए. अब पार्टिसिपेंट्स का नाम, जैसे एक पार्टिसिपेंट आपने है सृजा, राइट. ऑक्यूपेशन सृजा आपने क्या बताई? असिस्टेंट प्रोफेसर. असिस्टेंट प्रोफेसर. ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर. हाँ जी, हाँ जी सृजा. वही बोल रही थी, असिस्टेंट प्रोफेसर. ओके. देन जेंडर आई हैव टेकन 2 फॉर फीमेल. I think in occupation, right, in occupation we hadn't given string. occupation जो है, अच्छा हमने वो लिया है जो जॉब और वो लिया है ना, तो इसमें हम असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं लिखेंगे, हम इसमें 1 फॉर जॉब, राइट. एज लेट इट बी 21 years. इनकम लेट इट बी 50,000. देन सेटिस्फाइड विद जॉब, ये सृजा बता सकती है. हाईली एग्री. 1. राइट. ठीक है. नेक्स्ट पार्टिसिपेंट लेट इट बी विमन कुमार जी. हाँ जी, विमन कुमार जी की ऑक्यूपेशन क्या थी? 1 जॉब. नहीं, जॉब. विमन कुमार जी जॉब में है. जेंडर हियर विल बी 1 मेल. देन लेट इट बी एज इज let it be 25 years. Income let it be 54,000. I am assuming this. It's hypothetical. Satisfied with job, let it, what should I take Viman Kumar ji? 1 or 2? 2 लीजिए, क्योंकि तब वेरिएशन भी आएगा, नहीं तो सिंपल और नॉर्मल डेटा आ जाएगा. ठीक है.
ये आपका 2 आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट जितने भी हैं वो आपने इसमें फिल कर देने हैं। ये आपका जो है पूरी डाटा शीट बन जाएगी। आई हैव अ डाटा शीट, मैं वही ओपन कर रही हूँ इस टाइम पे टू सेव द टाइम। ये आप डेटा अपलोड भी कर सकते हैं, जैसे ये आप कर रहे हैं। पहले डेटा एंट्री हुआ है तो आप स्पेसेस में अपलोड भी कर सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं डाटा। ओपन में दोबारा से एक मिनट चलती हूँ। उनको दिखा दीजिए, वो बोल के दिखा दीजिए। फाइल, देन हाँ, फाइल में जाएंगे, ओपन में जाएंगे। सपोज आपने एक्सेल में डेटा एंट्री किया है तो वो आप डेटा में जाके कर सकते हो अपलोड। एक्सेल भी, एसपीएसएस भी, कोई भी फाइल इसमें आप ओपन कर सकते हो। इसमें आपने डेस्कटॉप पे जाना है। डेस्कटॉप पे जाके आपने जो आपका, जैसे इसमें मेरे फोल्डर जो है एसपीएसएस का मैंने फोल्डर रखा है, उसमें डाटा है, तो एसपीएसएस का फोल्डर मैंने ले लिया। उसमें जो आपकी डाटा की फाइल आपने लेनी है वो आप इसमें से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, लेट इट बी, मैं जो है ये फाइल आपकी खोल रही हूँ, हिस्टोग्राम्स की लेट इट बी। तो ये फाइल आपकी ओपन हुई। ठीक है, और मान लो अगर मेरी एक्सेल फाइल है तो उसको मैंने कैसे ओपन करना है? फाइल, डाटा, ठीक है, ओपन डाटा में जाके अगेन आपने जो भी फोल्डर आपका है वो सिलेक्ट कर लेना है। फोल्डर सिलेक्ट करके अगर मान लो आपकी फाइल एक्सेल फाइल है तो यहाँ से आपने एक्सेल पे चले जाना, चूज करना है। ठीक है, फाइल्स ऑफ टाइप। अदरवाइज देखो ये कोई भी आपकी एक्सेल फाइल नहीं शो कर रहा है, खाली नीचे टाइप्स में स्पेसेस है। ये डॉट एसएवी फाइल्स शो कर रहा है। एसएवी किसकी एक्सटेंशन होती है? जो आपकी एसपीएसएस की इनपुट फाइल्स होती हैं। जो आउटपुट फाइल है उसकी एक्सटेंशन रहेगी एसपीवी। ठीक है, ये सिर्फ आपकी आउटपुट इनपुट फाइल्स शो कर रहा है एस डॉट एसएवी के साथ। अगर आपने आउटपुट फाइल खोलनी है उसके लिए आपको डाटा पे नहीं जाना पड़ेगा, आपको आउटपुट फाइल पे जाना पड़ेगा। और ये आपने एक्सेल पे गए, ठीक है, एक्सेल पे जाके ये डाटा फाइल आपकी आ गई। ठीक है, ये डाटा फाइल ओपन कर दी। अब ये क्या कह रहा है कि फर्स्ट रो जो है एक्सेल शीट की उसको वेरिएबल नेम, क्योंकि एक्सेल फाइल है ना, तो उस वेरिएबल नेम, एसपीएसएस में 2 व्यूज हैं, डाटा व्यू और वेरिएबल व्यू। तो वो डाटा व्यू तो आपकी एक्सेल की फाइल की जो आपने वैल्यूज दी हैं उसको ले लेगा। व्हाट वेरिएबल नेम the SPSS will take, that will take whatever you entered in the first row of your Excel sheet। कि जो भी आपने एक्सेल शीट की फर्स्ट रो में एंटर किया ना उसको वेरिएबल नेम ले लेगा। तो हमने ओके कर दिया, ये आपका ओपन हो गया। ये देखो, ये नेम यही मैंने उसमें फर्स्ट शीट में दिया हुआ था, नेम, ऑक्यूपेशन, जेंडर, एज, इनकम, देन वही क्वेश्चंस जो आपने रैंकिंग वाले जो अभी थे वही आपकी जो है। ये पूरी की पूरी शीट प्रिपेयर्ड है। ठीक है, इस तरह से हम शीट प्रिपेयर कर सकते हैं। अब इस शीट पे फर्दर जो है आप किसी भी तरह से आप प्रेजेंट कर सकते हो। आप ग्राफ्स की फॉर्म में, लेट इट बी ग्राफ आपने बनाना है। ग्राफ बनाना है आपने, चार्ट बिल्डर में चले जाइए। चार्ट बिल्डर में जाके आपने जिस तरह का ग्राफ बनाना है वो आप यहाँ पे बना सकते हैं। लेट इट बी, मैंने ग्राफ जो बनाना है, सपोज मैं जो है आप एक ग्राफ बना रही हूँ, बार ग्राफ बना दिया मैंने। ठीक है, अब बार ग्राफ बना के मैंने इस साइड पे जेंडर ले लिया। ठीक है, अब जेंडर जो है मैंने इस साइड पे ले लिया और इस साइड पे काउंट की कितने मेरे पास जेंडर की डाटा है, कि कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, तो वो आपका इसमें ग्राफ बन जाएगा। 1 और 2, 1 आपको पता है आपने मेल को लिया है और 2 आपने फीमेल को लिया है। ये आपका ग्राफ बन गया। क्लियर? हाँ जी, क्लियर है मैम, क्लियर। ठीक है, इस तरह से आप ये किसी भी तरह के डाटा प्रेपरेशन जो आपकी फाइल प्रिपेयर होगी उसके बाद आप उसको प्रेजेंट अगर करना चाहते हैं तो किसी भी फॉर्म में, चाहे आप टैबुलेशन फॉर्म में, चाहे आप चार्ट्स की फॉर्म में, किसी भी तरह से आप जो है इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। Now coming to the next second part, that is data screening। हाँ जी, इतना क्लियर है? डाटा स्क्रीनिंग पे करें अब यहाँ तक। अगर कोई क्वेश्चंस है आप पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम्स है?
नो मैम, ठीक है। ठीक है, चलें डाटा स्क्रीनिंग या पे हम। अब देखो डाटा स्क्रीनिंग क्या होती है। जब कोई भी हमारे पास डाटा आता है, उसमें हमने कोई भी डाटा पे एनालिसिस करनी है, तो आपने बेसिकली, आपको घर पे अगर आप होते हो तो आपको एग्जांपल्स दी जाती है ना कि यू शुड बी आइडियल, कि आपको जो है, अगर लड़के हैं तो उनको कहते हैं कि यू शुड बी लाइक रामा, एंड इफ़ यू आर गर्ल देन यू शुड बी लाइक सीता, कि वो आपके रोल मॉडल हैं, आइडियल्स हैं। ऐसे ही कह के चलते हैं। फैमिली में आपकी इसी तरह से अपब्रिंगिंग लेके चलते हैं कि आइडियल आपको एक दे देते हैं, you have to be like that. So similarly in data there is a distribution which is considered as ideal one. What is that distribution? That is Z distribution, normal distribution. सबने मेरे ख्याल से ये सुना होगा Z distribution या normal distribution क्या होती है। तो सबसे पहले हमने ये देखना होता है, कोई भी डाटा, कोई भी हम टेस्ट लगाते हैं या कोई भी फर्दर डाटा हम लेते हैं, तो हम उसमें अज्यूम करते हैं जितने भी आपके जो है पैरामीट्रिक टेस्ट हैं, जो आपके कोई पूरा डाटा जो है ना, जब हाइपोथेसिस टेस्टिंग में जाते हैं तो उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं और एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं। जो पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं उसमें हम ये अजम्पशन लेके चलते हैं कि आपके पॉपुलेशन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपको नोन है और वो नॉर्मल है। हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि वो नॉर्मेलिटी की तरफ जा रही है। तो डाटा स्क्रीनिंग में सबसे पहला काम, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन है, हमें जो है काफ़ी सारी डिस्ट्रीब्यूशंस में ये चेक करना पड़ता है कि वेदर द डाटा इज नॉर्मल और नॉट। ठीक है, और फिर अगर आपके डाटा में आउटलायर्स आ जाएं, जो नॉर्मेलिटी होती है उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है नॉर्मेलिटी की। नॉर्मेलिटी में हम देखते हैं कि आपका जो है स्क्यूनेस, आप सबने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी होगी ना, स्क्यूनेस कितना होता है? What is skewness in normal distribution? अगर आपको पता हो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इस तरह का कर्व होता है, पता है? इस कर्व को कुछ स्पेसिफिक कहते हैं, बेल शेप्ड कर्व। में स्क्यूनेस तो जीरो होता है ना मैम? बिल्कुल जीरो होता है, बिल्कुल जीरो होता है, करेक्ट, वेरी ट्रू। ये बेल शेप्ड कर्व होता है। ठीक है, इसमें जो आपका लेफ्ट हैंड साइड का एरिया होता है वो राइट हैंड साइड के एरिया के बिल्कुल इक्वल होता है, बिल्कुल। और वो नीचे वाला पॉइंट जो होता है मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड, राइट, ऑल द थिंग्स कोइंसाइड देयर। हाँ, स्क्यूनेस आपका जीरो, मीन, मीडियन, मोड आपका जो है वो कोइंसाइड करता है। और इसमें कर्टोसिस, ये जो लेवल ऑफ पीकनेस है, इट इज आल्सो नॉर्मल। हम इसको लेके चलते हैं कि आपका जो β2 है, β2 कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस होता है, इट इज 3, β2 इक्वल टू 3 एंड γ2 इज 0। दो कोफिशिएंट्स होते हैं β2 एंड γ2, β2 इज इक्वल टू 3, ये लेके चलते हैं इसमें। बेल शेप्ड आपका कर्व रहता है इसमें। ठीक है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो टेस्ट है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के, एक तो इसका ये वे आउट हो गया। एक मिनट, इसको क्लियर कर दे, पहले क्लियर कर दो ना इसको। हाँ, ये नॉर्मेलिटी में ग्राफिकल मेथड्स हैं जिनसे आप टेस्ट कर सकते हैं। इसमें एक हिस्टोग्राम होता है कि हिस्टोग्राम का जो सेंटर वाला आपका बार है उसके लेफ्ट पे जितनी बार्स आ रहे हैं जिस डायरेक्शन में, उतनी ही राइट पे आ रही हैं। इसी तरह से स्टेम एंड लीफ मेथड होता है, बॉक्स प्लॉट होते हैं, पीपी प्लॉट होते हैं। इनसे आप जो है टेस्ट कर सकते हैं नॉर्मेलिटी। ये सारे ग्राफिकल मेथड्स हैं, मैं अभी एक एक करके सभी जो है SPSS पे लूंगी। देन ये आपके जो स्टैटिस्टिकल मेथड्स होते हैं, स्क्यूनेस, कर्टोसिस, एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कोलमोगोरोव स्मिर्नोव टेस्ट। ये बेसिकली, क्योंकि बाकियों से रिजल्ट्स फिर हम रिलायबिलिटी जो है उनकी नहीं रहती उतनी, पर कोलमोगोरोव स्मिर्नोव टेस्ट के रिजल्ट्स जो हैं उनको हम रिलायबल लेके चलते हैं कंपैरेटिवली। देन नेक्स्ट डाटा स्क्रीनिंग का पार्ट है आपका आउटलायर्स। कि आपने आउटलायर्स क्या होते हैं? आउटलायर्स होते हैं कि आपकी जो है वैल्यूज जो हैं वो सीरीज में, जो आपकी सीरीज चल रही है उससे बहुत बियॉन्ड जा रही है कहीं। जैसे लेट इट बी आपकी इनकम जो ग्रुप है उसमें इनकम चल रही है 50,000, 60,000, 70,000 पर मंथ, और एक पर्सन की इनकम आ जाती है 1 करोड़ पर मंथ, तो वो क्या है? आउटलायर, राइट? कि आपकी जो है जो डाटा की आपकी रेंज है
जो डाटा है आपका, एक या दो या चार वैल्यूज उसमें से ऐसी आ जाएंगी जो आपकी रेंज में फिट नहीं बैठती हैं। जैसे मान लो 50,000, 60,000, 70,000 आपकी इनकम चल रही है और एक पर्सन की इनकम आ जाती है लेट इट बी 100 रुपीज, तो वो आपकी रेंज से बाहर है, तो दैट इज आउटलायर। क्लियर होगी बात? फिर उसके बाद मिसिंग वैल्यूज जो है वो भी हम देखते हैं कि अगर आपकी वैल्यूज मिसिंग है तो उसको आपने क्या करना है, वेदर यू शुड इग्नोर दैट वैल्यूज, और आपने जो है उसको सब्स्टिट्यूट करना है। अगर सब्स्टिट्यूट करना है तो किस वे से करना है, तो ये सारा जो है आप डाटा स्क्रीनिंग में पहले चेक करते हो। डाटा स्क्रीनिंग में हम अगर SPSS में चलें, देखिए ये मैं एक फाइल ओपन कर रही हूँ, नॉर्मेलिटी की फाइल है, मैंने यही इसको नाम दिया है कि हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का इसमें चेक करना है। कैसे चेक करते हैं SPSS में? सबसे पहले हम एनालाइज में जाएंगे, ठीक है। एनालाइज में जाने के बाद हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जाके हमने एक्सप्लोर पे जाना है, ठीक है। अब एक्सप्लोर पे जाके लेट इट बी, आई हैव टू चेक वेदर द डाटा इज नॉर्मल और नॉट। मान लो मैंने डाटा चेक करना है एग्जाम के मार्क्स का, ठीक है, तो इसको मैंने डिपेंडेंट लिस्ट में ले लिया। क्लियर? ठीक है। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स में गए, डिस्क्रिप्टिव्स लेने हैं सारे, क्योंकि स्क्यूनर्स कर्टोसिस वो मुझे चाहिए। आउटलायर्स का टेस्ट इसमें आप ले सकते हो, ठीक है, इसमें आउटलायर्स हैं कि नहीं ये चेक कर सकते हो। देन यू हैव टू चेक प्लॉट्स। अब प्लॉट्स आपने देखने हैं तो प्लॉट्स में आप स्टेम एंड लीफ तो लेना ही लेना है, हिस्टोग्राम। देन नॉर्मेलिटी प्लॉट्स विद टेस्ट, जो आपने टेस्ट हैं कोलमोगोरोव स्मिर्नोव टेस्ट, उसके भी रिजल्ट्स आप साथ में चाहते हो। देन कॉन्टिन्यू। देन आपको स्टैटिस्टिक्स और प्लॉट्स दोनों चाहिए, तो बहुत आपने यहाँ पे बहुत पे टिक करना है क्योंकि आपको दोनों ही चाहिए, ठीक है। ए पर्सन, देयर इज अ पर्सन फ्रॉम केरला एंड असम, आर दे कंफर्टेबल विद हिंदी? Srija and No, ma'am. so Are you it's comfortable English. with? Biman Kumarji is comfortable. He's Okay. writing yes, ma'am. Srija, you are not. I not. Okay, Okay. then you should interrupt and tell me so that If I you're not converse totally in understanding. English. It's by chance that it clicked to me that you are from Kerala and there may be Hindi may not be their your usual language. That's why I asked. हाँ, you तो mix करते हैं. हाँ. You can mix. तो Okay, okay, okay. I am able to हिंदी understand. इंग्लिश सही रहेगा, दोनों हिंदी इंग्लिश अच्छा रहेगा, हाँ. दोनों आपका Okay. राइट मिक्स कर देंगे, मिक्स कर देंगे तो ओके हाँ. ओके मिक्स का सही रहेगा मैम। ठीक है, मिक्स ठीक रहेगा। तो ठीक चल रहा है जो अभी हाँ. जैसे मैं करवा रही हूँ, हाँ. ठीक है जी। तो इसमें आपने एक्सक्लूड केसेस लिस्ट वाइज ही रहने दीजिए, देन कंटिन्यू। ओके, ये आपके रिजल्ट्स आ गए। देखिए मीन 58.10, मीडियन 60, राइट, डिफरेंस है। देन स्क्यूनेस, अब ये नेगेटिवली स्क्यूड है, नेगेटिव स्क्यूड है। -0.107 और 0.241 करके आप इसका कर्टोसिस भी -1 है। हाँ, -1 है। इसमें जब स्क्यूनेस और कर्टोसिस आता है ना, तो आप सीधा एग्जैक्टली यहाँ से नहीं पता चलता आपको कि नॉर्मल है कि नहीं। यू डिवाइड दिस स्टैटिस्टिक्स, स्क्यूनेस की वैल्यू को आप डिवाइड करते हो स्टैंडर्ड एरर से। स्टैंडर्ड एरर से डिवाइड करके आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी होगी, आपका जो नॉर्मल रेंज आप लेते हो वो 5% एरर पे ±1.96 वैल्यू हम उसकी लेते हैं। तो if this value, that is statistics divided by standard error, it is less than ±1.96, then you will say that there is your null hypothesis that is accepted, that is there is no skewness, that is distribution is normal, right? Should I repeat? Okay, ma'am, it's okay. Got Clear? it. Clear. Clear, ma'am. Clear, ma'am. Okay, okay. Then here this value is -1.07. If I divide it by 0.241, then value will be Around 0.44. 0.44. Then according to skewness, it is near to zero. That means there is normality. If I go by the skewness. Now, if I go by this test, Kolmogorov-Smirnov test,
Now, what this test says here, you know the concept of null hypothesis and alternate hypothesis. Yes, ma'am. What is null hypothesis? What does null hypothesis mean? It is the original hypothesis. Original Okay. hypothesis. What does it mean? Explain it. What does word original means? What original means? What is null and what is alternative? Null The hypothesis. hypothesis we are going to be proved. Which we are going to prove, right? Ma'am, the population and the observation we are taking, there is no difference between the, significant difference between the specified population that we have taken and the observed one. That means basically it is an assumption. it is any claim regarding the population, Right. which Yes, we ma'am. have to prove that it is true by taking sample from that very population. Right. Basically, this is null hypothesis. Null. And null hypothesis is considered true until and unless it is proved to be wrong. Assuming. We Assuming assume to that be- it is. Yeah. You always assume it is true. You assume it to be true until and unless it is proved to be wrong. Proved. And opposite is with the alternative. Alternative, you consider it as a wrong until and unless you reject null hypothesis and you take alternative hypothesis as a true hypothesis. Right. ठीक है, जितनी देर तक आप रिजेक्ट नहीं कर देते, आप टेस्ट लगाते हो, उसमें रिजेक्शन हो जाती है नल हाइपोथेसिस की, फिर आप कहते हो कि आपका ऑल्टरनेट जो है वो एक्सेप्ट हो गया. अदरवाइज तब तक आप नल हाइपोथेसिस को ट्रू मान के चलते हो. तो अब कोल्मोगोरोव, स्मिर्नोव और शेप्रो-विल्क टेस्ट में आपकी नल हाइपोथेसिस क्या कहती है? नल हाइपोथेसिस कहती है कि नॉर्मेलिटी इज प्रेजेंट. ठीक है. एंड ऑल्टरनेट क्या कहती है कि नॉर्मेलिटी इज एब्सेंट. Clear? Clear? Normality is present and alternate is normality is absent. अब Absent. जैसे हम नॉर्मली करते हैं. जैसे हम नॉर्मली और इसमें अब आपकी SIG वैल्यू जो आप ये देखते हो, हाँ सिग्निफिकेंस वैल्यू जो आप देखते हो कि नॉर्मेलिटी आपकी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है या नहीं हो रही है, वो आप कहाँ से चेक करोगे? इस SIG वैल्यू से. सिग्निफिकेंट वैल्यू से. अगर आपने 5% लेवल पे चेक करना है, then this significant value it should be less than 0.05 to reject the null hypothesis. ठीक है. अगर आपकी वैल्यू 0.05 से कम आती है तो आप कहोगे कि आपकी null hypothesis रिजेक्ट हो रही है. तो ये वैल्यू 0.05 से कम है. Yes. Then your null hypothesis here it may be rejected. That means normality is not present. Normality is absent. ठीक है. स्क्यूनेस में ये रिजल्ट नहीं आ रहा था, यहाँ पे आ रहा है कि नॉर्मेलिटी इज एब्सेंट. सो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू दैट दिस टेस्ट इज मोर रिलायबल. Robust method. हाँ, robust method. Right. Robust method. Robust method. Similarly, we can test with Shapiro-Wilk test. Here again, it is less than 0.05. So we take that normality is absent. If I go by histograms, ये देखो ये histogram है ना? Clearly visible. Visible है. आपकी क्योंकि अप्स एंड डाउन्स हो रहा है. Exactly. आपका जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? आपकी सेंटर में पीक होती है. बीच में एक बीच में एक बार आएगा और both sides there will be similar view. ठीक है. वो हम जाएंगे अभी, वो भी एक में डिस्ट्रीब्यूशन आपको वो दिखाएंगे आपको. देन नेक्स्ट इज स्टेम एंड लीफ. स्टेम एंड लीफ क्या होता है? ये आपका स्टेम एंड लीफ का है. ये आपकी स्टेम है, ये लीफ है. व्हाट डज इट मीन स्टेम और लीफ? मान लो आपकी वैल्यूज हैं 60, 70, इस तरह से आपकी कुछ वैल्यूज हैं. ये वैल्यूज हैं, लेट इट बी 60. मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, एक मिनट, वर्ड पे बेटर रहेगा. मान लो आपकी वैल्यूज हैं 60, 62, 34, 36, 56, 35, 68, 42, 56, 55, 52, 58, 59,
then let it be 72, 74, 78, 82, 83, then let it be, I think this much. I should इतना हो take जाएगा 23, 24 also. Let it be. I think हाँ वो this much आइडिया आ is जाएगा sufficient. 24, 22. Let it be this. Now, how will we will prepare stem and leaf graph? One side is stem side and another one is leaf. अब यहाँ पे आपके दो पार्ट्स है ना, 66 और 0 है, 6 और 2 है, तो एक आप स्टेम में ले लेते हो जो आपका 10th डिजिट पे पार्ट पड़ा है, ठीक है, उसको आप स्टेम में ले लोगे. जैसे इसमें आपका स्टार्ट करूँ तो 2 से 22 भी है ना, 2 भी आ रहा है स्टेम में. देन नेक्स्ट आपका 3 भी आएगा स्टेम में, क्योंकि वैल्यूज यू है वैल्यूज 35, 33, 34, देन 4 भी आएगा स्टेम में, देन 5, देन 6, देन 7, देन 8. ये आपके स्टेम पार्ट में आ गए, राइट. अब लीफ पार्ट पे चलें. 2 की वैल्यूज क्या है, 22 से अगर मैं शुरू कर रही हूँ तो इट इज 2, ठीक है. 22 का 2 यहाँ पे आ गया, नेक्स्ट 2 यहाँ पे आ गया. उससे अगली वैल्यू क्या है 23, तो 3 यहाँ पे, देन 4, राइट. क्लियर. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट 3. 20 की सीरीज में इतनी ही वैल्यूज हैं. 3 पे आते हैं तो 30 की सीरीज में 34, देन 36, 35, then 36, 36 then I think this much. हाँ Then 3 ही है. next 40 की सीरीज में अगर हम आते हैं 42 की 42, then एक ही है. एक ही है. Then अगर हम 50 की सीरीज में आते हैं तो 55, 56, 55, 52, 55, then 56, then 8, then 59, 9. right. Then similarly with the help of 60, इसमें आपकी वैल्यूज आ रही हैं 60, 0, 0, 0, 2, 62, then 8, 68. 8. I think Yes. this much. हाँ, Then this next is with the help of 70, 70, हाँ 72, 74, 28. 78, 74. 74 is 70, there. हाँ 4 is also there. ठीक है. हाँ अब 248. 248. अब देखिए यहाँ पे जो आपका ग्राफ बन रहा है, 8 is also there. दिस विल बी लाइक दिस. हम्म कोई एक लीफ नहीं ना बना, No. इट इज नॉट ए लीफ शेप, हम्म सो नॉर्मेलिटी इज नॉट प्रेजेंट. पर अगर आपका मान लो ये वैल्यूज आपकी इस तरह से होती, लेट इट बी, मैं अज्यूम कर रही हूँ कि ये वैल्यूज इस तरह से होती, सिमिलर टाइप 2 3 4 5 2 3 2 5 इस टाइप का होता. आपका 2 3 4 5 चाहे ना भी हो, मेनली जो है आपका हाँ मतलब साइड में साइड नंबर ऑफ वेरिएबल्स. हाँ वेरिएबल्स, वही बोल रहा था, नंबर ऑफ Variables. वेरिएबल्स. हाँ ये लेट इट भी इस तरह से जा रहा है, ठीक है. और यहाँ पे ये इस तरह से आपका चला गया. Then let it be 0 to 8, 5, then 2 4 8. अगर आपका इस तरह से आ जाए, ये देखिए ये आपका जो है ऑलमोस्ट नॉर्मल जो है कर्व बन गया, लीफ बन जाएगा एक पूरा का पूरा. दिस शोज दैट नॉर्मेलिटी इज देयर. ये देखिए ऑलमोस्ट लीफ शेप, ठीक है, नॉर्मेलिटी इज देयर. हाँ जी. इसी तरह से अगर हिस्टोग्राम में चलते हैं वो भी यही होता है. अगर आप देखो यहाँ पे हिस्टोग्राम आप लेते हो जो SPSS की आउटपुट में आ रहा था, ये रखो ना.
आउटपुट ये देखिए, यहाँ पे भी आपका इस तरह से आ रहा है, कोई नॉर्मल आपकी कर्व नहीं ना बन रही कहीं भी ना। अगर ये कर्व इस तरह से बन जाता तो नॉर्मलिटी होती, देन देयर विल बी नॉर्मलिटी। अगर आपका कर्व इस तरह इस शेप का आ जाता। देन नेक्स्ट इज पीपी प्लॉट और क्यूक्यू प्लॉट। एक्चुअली व्हाट इज पीपी प्लॉट और क्यूक्यू प्लॉट? क्यूमुलेटिव ऑब्जर्व्ड वैल्यूज जो आपकी सीरीज की है, और क्यूमुलेटिव एक्सपेक्टेड वैल्यूज। एक्सपेक्टेड वैल्यूज की जब आप उसको जेड में कन्वर्ट कर देते हैं, जेड डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी होती है ना, एक्स माइनस एक्स बार ओवर स्टैंडर्ड डिवीजन, तो उसको हम एक्सपेक्टेड वैल्यूज लेके चलते हैं। तो जो आपकी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज हैं और एक्सपेक्टेड वैल्यूज, अगर इनमें हम ग्राफ ड्रॉ कर दें और ये ग्राफ आपका ये सेंटर लाइन के अराउंड आए तो हम कहते हैं कि नॉर्मलिटी है। अगर आपका सेंटर लाइन के अराउंड नहीं आता है तो हम कहते हैं कि नॉर्मलिटी एब्सेंट है। अगेन बहुत रिलायबल मेथड नहीं है। रिलायबल मेथड आपका वही है जो कोलमोगोरोव-स्मिर्नोव है, या फिर हिस्टोग्राम से बेटर पता चलती है। और ये बॉक्स प्लॉट, बॉक्स प्लॉट क्या होता है? इसमें 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है पूरा का पूरा आपका डाटा। कौन से 4 पार्ट्स हैं? ये स्टार्टिंग में 25% आपका लोएस्ट, देन नेक्स्ट 25%, देन नेक्स्ट 25%, देन नेक्स्ट 25%. That means this box that constitutes of middle 50%, and this line below the box it is 25%, and line above the box it depicts highest 25%. क्वार्टाइल्स पढ़े होंगे ना सबने, क्वार्टाइल्स में हम 4 पार्ट्स में सीरीज को डिवाइड करते हैं ना, इसी तरह से इसमें 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 25%, then again 25% in first lower part of the box, then in upper part of the box 25%, and in the upper part that is above the box that is highest 25%. अगर आपके बॉक्स के बीच में ये लाइन बिल्कुल सेंटर में आ जाए, if it is in the center, that means values above the that median, ये आपकी सेंट्रल वैल्यू है, मीडियन है। जो मीडियन के ऊपर जितनी वैल्यूज है और मीडियन के नीचे जितनी वैल्यूज है वो बिल्कुल सेम है, तो देयर विल बी नॉर्मलिटी। पर अब इस केस में आपकी वैल्यूज सेम नहीं आ रही हैं। नीचे वाला एरिया ज्यादा है ना, ऊपर वाला कम है। मीडियन इज अराउंड 60। हाँ ठीक है। और अगर नीचे वाला एरिया आपका ज्यादा है, ऊपर वाला आपका कम है, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड ज्यादा है, राइट हैंड साइड कम है। अगर हम सिंपली ग्राफ लेके चले, क्योंकि ये लोअर ऐसे शो कर रहे हैं ना, लोअर वाला बॉटम एरिया, लोअर वाला जो है पोर्शन ज्यादा है एंड अपर वाला कम है। If lower portion is more, that means, what does it mean? That there is negative skew. Negatively skewed. आपकी distribution वो lower side पे ज्यादा inclined है। First part there में। is first part में there is negative skew. क्लियर होगी बात? ठीक है। ये आपका जो है टेस्ट है नॉर्मेलिटी के, जो हमने सारे किए हैं नॉर्मेलिटी के टेस्ट। क्लियर हो गए कि आपने कोलमोगोरोव-स्मिर्नोव टेस्ट कर लिया, आपने ये कर लिया बॉक्स प्लॉट, और पीपी प्लॉट से आप कर सकते हो। पीपी प्लॉट यहाँ से आप बना सकते हो, एनालाइज, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, और ये पीपी प्लॉट्स। मान लो मैं परसेंटेज ऑन एसपीएसएस पे बनाना चाह रही हूँ, मैं ओके कर दूंगी, ये पीपी प्लॉट बना देगा। ये अगर इसके अराउंड आए लाइन तो हम कहते हैं नॉर्मेलिटी है, पर क्योंकि ये डिफरेंस आ रहा है, डिविएशंस आ रही हैं, तो नॉर्मेलिटी नहीं है इस सीरीज में। ठीक है। अब एक और इसमें आपको करके बताती हूँ मैं सीरीज, एनालाइज, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, एक्सप्लोर। अब इसमें परसेंटेज ऑन एसपीएसएस पे आपने लगाना है और एक्सप्लोर करना है वेदर नॉर्मेलिटी इज देयर और नॉट। तो लेट इट बी, हम पहले मैंने क्या किया कि मैंने सारी यूनिवर्सिटीज, इसमें ना अगर आप डाटा शीट देखते हो तो डाटा शीट में जो है आपकी, इसमें नॉर्मेलिटी वाली डाटा शीट हिस्टोग्राम्स की ओपन है, ये नॉर्मेलिटी की डाटा शीट में आप देखो ये यूनिवर्सिटीज हैं 0 और 1। इसका मतलब मैंने ये जो डाटा लिया है वो 2 यूनिवर्सिटीज के लिए लिया हुआ है। एक फर्स्ट यूनिवर्सिटी है ये आपकी यहाँ पे डंस्टाउन यूनिवर्सिटी है, और एक आपकी ससेक्स यूनिवर्सिटी है। ठीक है, 2 यूनिवर्सिटीज के लिए मैंने डाटा लिया है। अब जब 2 यूनिवर्सिटीज के लिए डाटा लिया है तो लेट इट अप्लाई ऑन द फैक्टर लिस्ट, that I divide the whole data into 2 parts and then apply all the normality test.
दैट मीन्स यूनिवर्सिटी 1 का डाटा ही अलग करके टेस्ट लगाए और यूनिवर्सिटी 2 का डाटा अलग उन पे टेस्ट लगे। क्लियर? हाँ जी, क्लियर हो गया इतना? क्लियर मैम। ठीक है, इफ वी अप्लाई टेस्ट लाइक दैट देन these will be the results। अब देखो ये 0.309 divided by 0.337 then minus 0.567 और 0.662। आप इसको डिवाइड करके देखो 0.309 डिवाइड बाय 0.337 कितना आ रहा है? It is 0.916। 0.916, right? That means skewness is absent। ठीक है, यहाँ पे skewness absent हो गया ना, because it is less than plus minus 1.96। Similarly, we can check for the kurtosis also। Clear? Then next is for sir जो हमने पहले distribution की है ना, I think there the value of skewness that was 5। Let me check। Here this is नहीं, it is minus 0.1 or 0.2, right? Here it is 0.3, 0.9 here. That means 0.9. less than my 1.96 plus 1.96. That means skewness is absent here. Then if I go by another university, that is 0.272 divided by 0.337, then it is 0.807. Again, it is less than 1.96. That means normality is present. Now I go by Kolmogorov-Smirnov test and Chaperovich test. Here, in Kolmogorov-Smirnov test for first university, what is SIG value? It is 0.200. Now it is greater than 0.05. Now it means we are accepting null hypothesis. If we are accepting null hypothesis, it means normality is present. Normality exists. Similarly, for the another university, normality exists. Now, what does आप इसको इंटरप्रेट कैसे करोगे? इसकी इंटरप्रिटेशन ये है, इसका मतलब ये है कि आपकी रेंज जो एक यूनिवर्सिटी की है और जो दूसरी यूनिवर्सिटी की है वो आपस में मैच नहीं कर रही है, क्योंकि जब मैं मिक्स कर देती हूँ डाटा तो वो आपकी रेंज मैच नहीं होने के कारण नॉर्मेलिटी खत्म हो जाती है। पर अगर मैं एक अलग अलग यूनिवर्सिटी का डाटा ले रही हूँ तो उसमें नॉर्मेलिटी आ रही है। ये देखो हिस्टोग्राम से क्लियर हो रहा है, ठीक है? उसके साइड पे वैल्यूज जा रही है, दूसरी साइड पे वैल्यूज जा रही है, ठीक है? इसमें वैल्यूज जो है आपकी, देखो अगर आप ग्राफ पे लोगे तो ये इट विल बी लाइक समवट नॉर्मल, बेल शेप कर्व, बेल शेप कर्व। It will be somewhat like normal, not exactly normal but somewhat like normal, ठीक है? जो 5% एरर ले रहे हैं ना वो इसीलिए है कि somewhat like normal। अगर 100% नॉर्मेलिटी होती तो एरर आती नहीं, वो जीरो होता। सिग्निफिकेंट वैल्यू जो है वो आपकी 0.0000 होती, क्योंकि हाँ पॉइंट एरर कोई नहीं होती, फिर आपकी पूरी नॉर्मेलिटी ही होती। अब ये देखो, अगर हम स्टेम एंड लीफ ग्राफ लें उसमें देखो लीफ बन रहा है, ये देखिए लीफ बन रहा है ना कंपैरेटिवली। हाँ ये लीफ बन रहा है, उसमें बिल्कुल नहीं बन रहा था, इसमें देखिए लीफ बन रहा है, तो नॉर्मेलिटी शो कर रहा है। क्लियर हुई बात? अब इसी तरह से अगर हम दूसरे का देखेंगे, अगेन दूसरे में भी लीफ बन रहा है, आप यहाँ पे लीफ बन रहा है। अब क्यू प्लॉट देखो पहले से बेटर हो गया, लाइन के अराउंड है, वो लाइन कोइंसाइड कर रहा है, लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है? इधर भी क्लियर हुई बात? अब ये बॉक्स प्लॉट देखो पहले से बेटर हो गए, सेंटर में आ गई मीडियन, ऊपर और नीचे ऑलमोस्ट सेम, और इसमें थोड़ा फर्क है, लेकिन स्क्यूनेस हमारा जो है वो जितना भी स्क्यूनेस आ रहा है वो हमने देख लिया ऊपर कि वो आपका जो है 1.96 से कम आ जाती है वैल्यू जब हम उसको स्टैंडर्ड एरर से डिवाइड कर देते हैं। तो ये आपके क्लियर हो गया इतना कि ये नॉर्मेलिटी टेस्ट है आपके।
हाँ जी, इतना क्लियर हो गया? ओके। और इससे आप लोग जो डिफरेंट डेटा सेट है ना उसको टेस्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा सेम साइट में कुछ हम ब्रेक लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल सपोज हम प्री 1991 पोस्ट 19 प्री लिबरेशन पोस्ट लिबरेशन टेस्ट करते हैं। सपोज 1991 का पीछे का डेटा आप ले लो एक सेट, उसका नॉर्मलिटी टेस्ट कर लो, 1991 के बाद का डेटा ले लो, फिर टेस्ट कर लो, फिर आपको पता चल जाएगा। ये सब मतलब कंपैरिजन ऑफ टू सेट्स if you collected more data. It can be used for comparison of two tests, two series, or for one series also. Why one series? Same series भी कर सकते हो, मैं वही बोल रहा हूँ। एक क्यों सीरीज को करना पड़ता है कि जब भी आपने कोई हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है ना, या कोई भी एनालिसिस लगाना है, तो उसमें हम एक कंडीशन लेके चलते हैं कि आपकी जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसकी पॉपुलेशन दैट शुड बी नॉर्मल इन नेचर। नॉर्मल, हाँ। जब तक आप नॉर्मेलिटी टेस्ट नहीं करोगे, आपके रिजल्ट्स जो हैं, जो आपने टेस्ट लगाया है, क्या वो टेस्ट वहां पे लगना भी चाहिए या नहीं लगना चाहिए, वो कौन डिसाइड करता है कि वेदर यू व्हाट इज नेचर ऑफ योर डिस्ट्रीब्यूशन, करेक्ट, वेदर दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल और नॉट, वेदर द assumptions that we follow in given analytical technique, whether that are followed in our distribution or not. ठीक है, जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल लूं, अगर आपने एनोवा लगाना होता है तो उसमें एनोवा में एक assumption होती है कि वेरिएंस ऑफ टू ग्रुप्स दैट शुड बी सेम। ठीक है, तो अगर वेरिएंस आपकी सेम नहीं आ रही और आपने एनोवा लगा दिया तो वो आपका टेस्ट फेल हो जाएगा, तो सही रिजल्ट नहीं दे पाएगा। इट्स नेसेसरी कि आप चेक करो कि आपकी जो है डिस्ट्रीब्यूशन सही है या नहीं। आप वेरिएबिलिटी का चेक भी बॉक्स प्लॉट से कर सकते हैं कि आपकी वेरिएंस सेम है कि नहीं। ये देखो, ये दो डिस्ट्रीब्यूशंस है ना, दोनों का वेरिएंस अलग है, एक का ये कम है, इसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है। ठीक है, वेरिएंस आपकी सेम नहीं आ रही है। अगर लेट इट बी सेम आपके जो है साइज के होते और सेम ही आपकी ये कर्व्स ऊपर नीचे जा रहे होते, तो आप कहते हैं ये वेरिएंस सेम पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, दो सीरीज की वेरिएंस को भी हम इसमें कंपेयर कर सकते हैं। अगर हमने आउटलायर्स का चेक करना हो तो आउटलायर्स के चेक के लिए जो है आपकी अलग अलग जो इसके बेस हैं। यूनिवेरिएट में हम हिस्टोग्राम या बॉक्स प्लॉट के साथ चेक करते हैं। अगर मल्टीवेरिएट में करना हो तो ये महल-नॉबिन्स डिस्टेंस या कुक्स डिस्टेंस ये लगते हैं, और महल-नॉबिन्स और कुक्स डिस्टेंस जो है ये मल्टीपल रिग्रेशन का पार्ट है, तो उसमें लगते हैं। हम उसी में कवर करेंगे जब मल्टीपल रिग्रेशन करेंगे। और ये यूनिवेरिएट का जो है हिस्टोग्राम और बॉक्स प्लॉट, वो मैं आपको अभी बताने लगी हूँ कि हम कैसे करते हैं। लेट इट बी, ये आपकी एक फाइल है, इनपुट फाइल हम ले लेते हैं। हिस्टोग्राम्स की फाइल हमने ओपन की हुई है। हिस्टोग्राम्स की फाइल में लेट इट बी कुछ आपके पास वैल्यूज जो हैं वो मैं चेंज कर रही हूँ वैल्यूज, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो मेरी आउटलायर्स आए। पहले ऐसे ही लगा के देखते हैं, मे बी ऐसे ही आउटलायर्स आ रहे हों आपके, फिर उसके बाद अदरवाइज मैं चेंज कर दूँगी सीरीज। एनालाइज में जाके अगेन आपने एक्सप्लोर करना है। एक्सप्लोर करके आपने लेट इट बी डे 1 हाइजीन इधर ले लिया आपने, और आपने प्लॉट जो है प्लॉट्स में आपने हिस्टोग्राम, ये आपके नॉर्मेलिटी प्लॉट अगर आप लेना चाहते हो ले लो, और अगर आपके स्टेटिस्टिक्स हैं इसमें आप आउटलायर का टेस्ट लोगे, कंटिन्यू करोगे। और हिस्टोग्राम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि आउटलायर्स इससे भी टेस्ट हो जाते हैं। ओके, ये आपके ग्राफ आ गए। ये देखो, इन ग्राफ से भी क्लियर है, एक आपका बिल्कुल अलग जा रही है वैल्यूज। ठीक है, ये देखिए सीरीज से बाहर दो, सीरीज से बाहर, बाकी सब नीचे यहाँ पे है, ये दो बहुत ऊपर है, मतलब आउट ऑफ सीरीज अलग। अब ये देखो, एक और वैल्यू लेती हूँ, उसमें चेंज करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन। और लॉजिक आप समझिए, जब आपका आउटलायर होता है कोई भी सीरीज में, सपोज देयर इज आउटलायर इन योर डेटा, देन दैट विल अफेक्ट योर मीन वैल्यू। आपने पढ़ा होगा मीन इज अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज, मतलब टू लो है और टू हाई है, तो आपका मीन ना बहुत
वैरी करेगा। जैसे अभी एग्जांपल दे रहे थे, 50,000 आपका इनकम है, 60,000 70,000, एक का 1 करोड़ आ गया, तो उसका एवरेज वैल्यू कहीं ना कहीं लाख में चला आएगा। दैट इज नॉट ट्रू। और सपोज 50,000 50,000 60,000 70,000 इनकम है, एक का इनकम 100 रुपए आ गया, तो आपका एवरेज ले लोगे तो वो सपोज 5,000 6,000 एवरेज आ जाएगा, मीन आ जाएगा। तो दैट इज नॉट, दैट डजंट शो द एक्चुअल नेचर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। इसलिए आउटलायर्स जब होगा तो यू हैव टू ट्रीट दैट आउटलायर, नहीं तो आपका रिजल्ट्स बहुत अफेक्ट हो जाए। देखिए, अब सर ने बिल्कुल सही कहा है। मैं सर की बात में एक आपको ऐड करके बताती हूँ। लेट इट बी, मान लो मैंने इंडिया की नेशनल इनकम ओवर द लास्ट 10 ईयर्स देखनी है, ठीक है। एक साल आ गया जिसमें, लेट इट बी यही साल ले लें, अभी कोविड-19 का इम्पैक्ट, ठीक है। कोविड-19 के इम्पैक्ट पे आप देखिए आपकी इनकम जो है तो बहुत ज्यादा जो है इफेक्टेड होएगी। इसमें मे बी नेगेटिव ग्रोथ, जैसे एस्टिमेट कर रहे हैं, मे बी नेगेटिव ग्रोथ आ जाए। और अगर ये नेगेटिव ग्रोथ, इट इज ए आउटलायर, क्योंकि पूरी सीरीज आपकी चल रही है 6% पे, 4% पे, 5% पे, और उसमें एक आपकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव ग्रोथ पे आ जाए, इट इज एन आउटलायर। अगर मैं इसको सीरीज के बीच में कंसिडर कर लेती हूँ तो आपका जो है, जो नॉर्मल एवरेज ग्रोथ रेट है वो सही नहीं निकल पाएगा। कि आपका क्या ग्रोथ ट्रेंड जो है फॉलो हो रहा है वो सही नहीं निकल पाएगा। इसी तरह से कंजम्पशन पैटर्न्स अगर लेती हूँ, एक फैमिली का मैंने कंजम्पशन पैटर्न अगर देखना है, लेट इट बी एक फैमिली अपने मंथली उसकी जो कंजम्पशन पे खर्च हो रहा है वो 50,000 80,000 हो रहा है, या 60,000 हो रहा है, या 70,000 हो रहा है किसी मंथ में। पर क्योंकि ये कोविड का टाइम है और लोग जो है होर्डिंग्स कर रहे हैं कि एसेंशियल कमोडिटीज आगे के लिए उन्होंने सेव करके रखना है, कल को पता नहीं कि जॉब लॉस, अनसर्टेनिटीज हैं बहुत ज्यादा, कल को जॉब लॉस हो जाए, क्या प्रॉब्लम आ जाए। तो अगर लोग सेव करके रख रहे हैं तो मे बी इस टाइम पे सिर्फ एसेंशियल कमोडिटीज पे खर्च होने के कारण उस फैमिली की इनकम कट होके वो 10,000 पे आ गई हो या 15,000 पे आ गई हो, तो ये आउटलायर है। कि वो पूरी सीरीज में फिट नहीं बैठ रहा है, वो उसका एवरेज कंजम्पशन पैटर्न नहीं बताएगा। तो वी हैव टू डिलीट दैट डाटा टू गेट द एवरेज, कि क्या उसका एवरेज आ रहा है। क्लियर? हाँ जी। अब देखो, मैंने आपको बताया था, एक मैंने कुछ चेंज किया। ये देखिए, हिस्टोग्राम की हेल्प से कैसे निकाल सकते हो। ये हिस्टोग्राम है, हिस्टोग्राम में सारा हिस्टोग्राम यहाँ पे पड़ा है और नॉर्मल शो हो रहा है, और ये कुछ पार्ट्स, ये पार्ट, दिस पार्ट 1 2 3, ये 4 5 6 वैल्यूज जो है, ये पार्ट, ठीक है, ये 6 वैल्यूज ये बार्स से बाहर है, ठीक है। these are the beyond the series and these are the extreme values or outliers. There are two concepts, outliers or extreme values. That's why I edited some data so that I can make it more clear. ये देखिए, ये आपकी सीरीज है ना, ये 0, ये O के साथ जो रिप्रेजेंट हो रहा है, it is outlier. And whatever is presented by asterisk, it is extreme value. Extreme value. And if it is presented by O, that is outlier, it means, what does outlier means? That it is beyond the series from, that is, it is beyond plus minus 1.5 standard deviations. कि आपकी जो सीरीज है उसके अगर 1.5 स्टैंडर्ड डिविएशन के बियॉन्ड आ गई वैल्यू और वो 3 स्टैंडर्ड डिविएशन से कम है, तो ये आपकी जो है आउटलायर है। पर अगर वो 3 स्टैंडर्ड डिविएशन के बियॉन्ड वैल्यू आ रही है, देन इट इज एक्सट्रीम वैल्यू। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट पढ़ा हुआ है ना, प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डिविएशंस तक हम लेके जाते हैं उसकी सीरीज की रेंज। तो हम कहते हैं कि अगर उससे बियॉन्ड आ जाए तो हम कह देंगे कि वो आपकी एक्सट्रीम वैल्यू है। और अगर आपकी इन बिटवीन 1.5 स्टैंडर्ड डिविएशन के आ रही है तो हम कहते हैं ये आउटलायर है। क्लियर? हाँ जी, क्लियर है? Am I audible? Got it, ma'am. Got it, Clear? ma'am. Got it. Yes, yes. These are the basic data screening techniques which I have explained to you. I think it is clear. Any query till now? Any query? Any doubt? Ma'am, I had a doubt that while testing normality,
Like Right. we went through the stem and leaf, the box plot, and the Kolmogorov-Smirnov Right. test. Right. If you look only just at this Smirnov test, will it do for us? Kolmogorov-Smirnov test, yes, it can work. Actually, basically, it can work. It gives better results in case of small samples. Okay. You can work. मैंने आपको पहले बताया, we generally rely on these tests. Okay. Kolmogorov-Smirnov test and Shaplov-Wilk test. तो मैम Because, इसका मतलब अगर सैंपल साइज 30 हुआ तो वो स्मॉल सैंपल होता है, तो उसी में ये टेस्ट आई मीन काम आएगा. बट इफ इट द सैंपल साइज इज लार्ज अबव 30. Shaplov-Wilk, that is applicable to small sample. Kolmogorov तो हम दोनों जगह पे लगा लेते हैं. अच्छा, तो मैम हम जब क्वेश्चनर से डेटा एंट्री कर रहे हैं, हर एक डेटा मतलब बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, हर एक वेरिएबल के लिए हम लोगों को नॉर्मेलिटी टेस्ट करना पड़ेगा. डिपेंड्स आपने टेक्निक क्या लगानी है, एनालिसिस कैसे करनी है, कौन सी टेक्निक एनालिसिस की यूज कर रहे हो, उसकी अजम्पशन है नॉर्मेलिटी, तो यू हैव टू चेक. सो बेसिकली लाइक क्या हाइपोथेसिस ले रहे हैं उसी हिसाब से नॉर्मेलिटी. एग्जैक्टली आप क्या हाइपोथेसिस ले रहे हो, क्या आपकी एनालिटिकल टेक्निक लगनी है, उसके बेसिस पे आपने निकालना है. ओके, थैंक यू. ठीक है, ओके. इतना क्लियर हो गया. शुड आई मूव टू डेटा ट्रांसफॉर्मेशन नाउ? या मैम. व्हाट इज डेटा ट्रांसफॉर्मेशन? आपका जो डेटा है, इफ यू वांट टू चेंज, जैसे मैंने कहा कि स्क्यूनेस आ रहा है, ठीक है, मैंने कहा कि पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन आपकी लीनियर नहीं है. लीनियरिटी टेस्ट भी होते हैं, जो स्क्रीनिंग में हम लीनियरिटी टेस्ट भी करते हैं, वो स्कैटर प्लॉट के साथ करके देख लेते हैं कि आपका लीनियर ग्राफ बन रहा है या नहीं बन रहा. वो बाईवेरिएट सीरीज में या मल्टीवेरिएट सीरीज में हम करते हैं. जो लीनियर चेकिंग है वो मल्टीपल रिग्रेशन का एक अजम्पशन होती है. अगर आपको पता हो कि इट इज डेटा जो आपका रिलेशन है दैट शुड बी लीनियर, तो वो लीनियरिटी चेक भी हम करते हैं, बट वो यूनिवेरिएट में नहीं लीनियरिटी चेक एज सच होते. तो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या करेंगे, आपने जो भी लेट इट बी आपका कोई भी डाटा है तो आपने उसको ट्रांसफॉर्म करना है. ट्रांसफॉर्म कैसे करना है, लेट इट बी आपका पॉजिटिव स्क्यूनेस आ रहा है तो आप उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट. ठीक है, स्क्वायर रूट लेके आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, तो वो आपका जो है ट्रांसफॉर्मेशन, डाटा ट्रांसफॉर्मेशन करके जो सीरीज आएगी उसमें स्क्यूनेस कम हो जाता है, पॉजिटिव स्क्यूनेस. सिमिलरली लॉग लेके आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, ये हम कंप्यूट पे जाके कन्वर्ट करते हैं. ट्रांसफॉर्म में जाके कंप्यूट वेरिएबल. हाँ जी, क्लियर. कंप्यूट वेरिएबल में जाएंगे. कंप्यूट वेरिएबल में जाके हमने लेट इट बी अपने वेरिएबल जो है किसी डाटा फाइल में दूसरी खोलती हूँ, SPSS से खोल लेते हैं ताकि आपको उसमें कंपैरेटिवली बेटर क्लियर हो जाए. फाइल ओपन, नॉर्मलिटी का हमारा वैसे ओपन ही है पहले. हम ये ले लेते हैं ट्रांसफॉर्म कंप्यूट वेरिएबल परसेंटेज ऑन SPSS. ठीक है, आई टेक लॉग ऑफ दिस, लॉग एग्जाम मार्क्स. How I will take log of exam marks? I have to put here numeric expression that will take log of exam marks. How I will take log? It is arithmetic operation, and I will take natural log on the base of 10. Natural log जो है वो जनरली हम यूज करते हैं जो आपकी सीरीज जो है इकोनॉमिक सीरीज होती है जितनी भी, या कॉमर्स की सीरीज होती हैं, उसमें हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ लेते हैं, इसलिए नेचुरल लॉग लेते हैं. यहाँ पे हम बेस 10 पे ले लेंगे लॉग, और इसको जो है जो हम आउटपुट वेरिएबल पे नाम चाहते हैं वो यहाँ पे दे सकते हैं. लेट इट बी लॉग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मार्क्स ऑफ SPSS एग्जाम. और न्यूमेरिक वेरिएबल आपने इसको लेना है, कंटिन्यू कर देना है, एंड ओके पे प्रेस करेंगे, और ये आपकी जो डाटा शीट है उसमें एक वेरिएबल ऐड हो जाएगा लॉग एग्जाम. देखिए हो गया ना वेरिएबल व्यू में, और डाटा व्यू में भी लॉग एग्जाम ऐड हो जाएगा. ठीक है, अब अगर आप इस पे, अगर आपका डाटा पॉजिटिवली स्क्यूड है
और इस पे आप फर्दर एनालिसिस लगाओगे तो ये आपका कंपैरेटिवली नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हुई बात? हाँ जी, क्लियर हो गया? क्लियर है? Yes, madam. Ma'am, here you want to say that in case there is a deviation from the normality aspect, any kind Right. of skewness can be corrected by transforming the variables into log part of it. No, not any type. If in case of positive skewness, we can take log or or square root. These both techniques are applied to the positive skewness series. Ma'am, If- one is log Log and other one is square root. Square root. Okay. And let me perform that also. Transform compute variable. Then suppose I have to take square root of exams, type and label. Square root of marks of SPSS exam numeric, and here I will take square root. How I will find out square root? You can take from here also square root. Okay, then press OK. Again the series will be added in your normality. Fine. Okay. Right? You can perform any kind of transformation by just by applying the formula in transform and compute variable. Suppose it is you want to convert your series like this. You want to take square of exams. Exam, then square. Right? Take here square of exams. Square of exams. Type and label here. Convert it into square of. Marks. Right? Acha. It will be in series square of exams. That is added. Anyone, I think someone has asked question that if there is no normal series, then we can convert it by transforming data, convert it into the normal series. Yes, we can, but that application that should be according to your theoretical concepts. देखो, अगर कोई भी सीरीज है आपकी, ग्रोथ रेट्स हैं, आप उसको स्क्वायर करके उस पर जो है मान लो स्क्यूनेस आपने खत्म कर दिया और उस पर एनालिसिस लगाओगे तो रिजल्ट्स नहीं सही देगी। पर अगर आपकी लेट इट बी कोई इकोनॉमिक सीरीज है और वो जनरली जो है आपकी नेगेटिवली स्क्यूड होती है, अगर आपको पता हो, उस पर लॉग लगा दोगे तो आप वो वैलिड है। आप नेचुरल लॉग ले सकते हो जो आपके ग्रोथ रेट्स हैं, या फिर जो आपकी नेशनल इनकम की डाटा है या किसी चीज़ का डाटा है, उसमें नेचुरल ग्रोथ लेते हो तो लॉग ले लेते हो, तो दैट विल डिपिक्ट योर ग्रोथ रेट ऑफ दैट सीरीज। मान लो आपको जीडीपी दिया हुआ है, उसका नेचुरल लॉग ले लिया, तो दैट अगर हम कंसेप्ट वाइज देखेंगे तो नेचुरल लॉग ऑफ एनी वेरिएबल दैट विल बी ग्रोथ रेट। तो ग्रोथ रेट पे आपकी रिलेशन निकल आएगा, वो ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे स्क्वायर कर दो, ऐसे वो चीज नहीं चलेगी। यू हैव टू रिलेट इट विथ theoretical concepts. Clear? Okay, ma'am. That means that what are the requirements? What are the requirements of our research? According to that, we have to use. Definitely. लॉजिक, अब जब रिसर्च करते हैं ना, तो कोई बैकग्राउंड थ्योरी होता है। जैसे इकोनॉमिक्स और इकोनॉमेटिक्स में बेसिक फर्क क्या है? इकोनॉमिक्स में हम बेसिकली लॉजिक थ्योरी यूज करते हैं और इकोनॉमेटिक्स उस थ्योरी को अप्लाई करके एस्टिमेशन करते हैं। थ्योरी का एस्टिमेशन जब करते हैं हम इकोनॉमेटिक्स बोलते हैं। तो आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड थ्योरी होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, मतलब जनरली आपने देखा होगा, ये बहुत मतलब होता है, लोग ना पेपर पब्लिश करने के लिए कुछ भी लगा देते हैं। मतलब सपोज 2 साल का डेटा है,
मैंने देखा है, मतलब बहुत सारे पेपर मुझे ही आता है मेरे जर्नल के लिए, 5 साल का डेटा है, उसने टाइम सीरीज किया है। जबकि टाइम 5 साल सीरीज के करने डेटा के लिए, हाँ 5 साल के डेटा में टाइम सीरीज लग ही नहीं सकता टाइम सीरीज किसी भार मॉडल बेसिस मॉडल उसने लगाया है 5 साल में। मैंने बोला टाइम सीरीज करने के लिए एटलीस्ट आपको 30-40 साल का डेटा चाहिए, 25 years at least. टाइम सीरीज 25 मिनिमम है अगर मिनिमम आपने टाइम सीरीज। हाँ। हाँ, और रिग्रेशन के लिए करने के लिए आपको मिनिमम 20 ऑब्जर्वेशन चाहिए होता है, और आप 5 साल में टाइम सीरीज कर दो। और क्योंकि वो लॉजिक नहीं है, बिल्कुल थ्योरी नहीं है, क्योंकि Right, sir. टाइम सीरीज हम इसीलिए टाइम सीरीज में बेसिकली हम क्या बोलते हैं कि एनी वेरिएबल विल फॉलो ए टाइम साइकिल। तो अब जब टाइम दोगे, सपोज जीडीपी या लिटरेसी रेट या ग्रोथ रेट, एनीथिंग दैट विल, मतलब जो इकोनॉमी का जो नॉर्मल फेज है वो बिजनेस साइकिल देके वो नॉर्मल में जाएगा, तभी आपका ट्रेंड समझ में आएगा। 5 साल आपका ले लिया, कोई ऑफ फेज वाला ले लिया आपको दिखाने के लिए, और कुछ लोग तो जान के लेते हैं, मतलब वो दिखाने के लिए कि नहीं, मतलब उनके माइंड में रहता है कि आई हैव टू शो पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन दिस टू वेरिएबल्स, तो वो दैट पार्ट को चूज करते हैं जिसमें पॉजिटिव ग्रोथ आ रहा है। सपोज मतलब आउटपुट आपके पास रिजल्ट पहले है, डाटा उसके बाद लेके उस पे एग्जैक्टली, मतलब अभी मैं मतलब इन द सेंस पॉलिटिकल का ले लीजिए आप, मतलब नॉट टू कमेंट ऑन एनी पार्टी, इन जनरल में बोल रहा हूँ। डेफिनेटली देखना आप जब बजट होता है ना, तो वो क्या करते हैं ना, जो पार्ट उनको अच्छा लगता है, जो पार्ट से पॉजिटिव ग्रोथ है, सपोज 2015 से पॉजिटिव ग्रोथ है टू 2019, वो 2015 ही लेंगे, लेकिन उनका रूल सपोज 2014 भी था, वो 1 साल नहीं लेंगे। यूपीए में भी 2004 से 2014 था, लेकिन वो कुछ पार्ट नहीं लेते। जब हाई ग्रोथ था तो रिगार्डिंग 2007, 2008, 2009 ईयर, वो पार्ट ही वो शो करते हैं, तो दैट इज बायस। तो आपका लॉजिक क्लियर होना चाहिए, वहां पे थ्योरी बिहाइंड योर एस्टिमेशन। आपका लॉजिक जब क्लियर होगा, आपका डेटा भी ठीक रहेगा। ओके सर, थैंक यू सर। इसी तरह से एक और ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल होती है, जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा था, whether the data can be transformed, ratio data जो है that can be transformed into ordinal, ratio data can be transformed into nominal. I already told you. Here I am giving you one example. This is your ratio data. These are the lectures, right? And it range from, I think, near about 8. I have seen the value 8 to 100. I am classifying this data and converting it into nominal data. Let it be, it can be nominal or ordinal. Let it be, I give coding to data that I take one classification as less than 25, another as 25 to 50, then 50 to 75, then 75 to 100. How I will classify that? You have to go to transform, then recode into different variable. मैंने करना है लेक्चर को, तो ये मैंने परसेंटेज ऑन लेक्चर यहाँ पे ले लिया। आउटपुट वेरिएबल, ये कोडेड वेरिएबल, कोडेड लेक्चर्स, ठीक है, कोडेड लेक्चर्स। ये स्पेस नहीं देनी है क्योंकि ये इनपुट नेम है, यहाँ पे आप स्पेस ले सकते हो। कोडेड लेक्चर वेरिएबल, ठीक है। अब ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज पे हम जाएंगे। आपकी ओल्ड वैल्यू क्या है? पहला मैंने कहा लेस देन 25, रेंज लोएस्ट थ्रू वैल्यू 25। मैंने 25 तक वैल्यूज टू जितनी भी हैं उनको क्या देनी है वैल्यू, लेट इट बी, मैंने न्यू वैल्यूज में देनी है 1, ठीक है। यू विल ऐड इट। देन नेक्स्ट है लेट इट बी रेंज वैल्यू थ्रू हाईएस्ट, या फिर पहले ये ले लेते हैं 25 तक, उसमें ले ली हमने। देन 25 से लेकर वैल्यूज मैंने नेक्स्ट ली, लेट इट बी अप टू 50, ठीक है। उसको मैंने वैल्यू दे दी 2, कंटिन्यू। क्योंकि ये दोनों जगह पे हमने 25 लिया, दैट्स व्हाई इज नॉट टेकिंग दिस। 26 और 50 ले लो, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर सीरीज है ना आपकी वैल्यूज, इसलिए उसने नहीं ली।
26 to 50 वो नहीं लिया, नीचे 20 हो गया 20 आ गया, तभी नहीं आया। हाँ, 26 to 50 वैल्यू यहाँ पे अभी 2 ऊपर अभी ऐड, ठीक है। देन नेक्स्ट वी विल टेक 51 to 75, then value 3 add, then 75 से ऊपर जितनी भी वैल्यूज हैं, ठीक है, we will take it as value 4, then continue add. ये लेगा वैल्यू, तभी मैंने दोबारा करके देखा है। रीजन भी नहीं, यहाँ पे डेसिमल्स में है, तो ये 75 थ्रू हाईएस्ट, मुझे लगता है कुछ और उस टाइम पे मेरे से प्रेस हुआ है। $50 to 75 हो गया, और ये वैल्यू 25 to 50, इसको 2 ले लिया, चेंज, ठीक है। आगे सारी सीरीज 1 2 3 4 we will continue it, right? Then change, okay. Now we will go to our input file. ये देखिए आगे कोडिंग, ठीक है, सारी की सारी कोडिंग आपकी कन्वर्ट कर दिया उसने सीरीज को। क्लियर? ये आप यूज कर सकते हो। आपको ना कई बार डाटा दिया होता है, लेक्चर्स की फॉर्म में डाटा दे दिया, एक वेरिएबल है आपका कि उसमें रिलेटेड भी आपकी इनकम दी हुई है पूरी एब्सोल्यूट टर्म्स में, दूसरी साइड पे आपको जेंडर दिया है, आपको कहें कि आपने रिलेशन निकालना है, वेदर दे आर एसोसिएटेड और नॉट। अगर इस तरह की एसोसिएशंस निकालनी हो कि आपका जो है वेरिएबल्स आपस में रिलेटेड हैं कि नहीं, एसोसिएशन है कि नहीं, देन वी यूज chi-square टेस्ट। और chi-square में आपके दोनों डाटा जो है वो नॉन मीट्रिक होने चाहिए, तभी chi-square लगता है। तो आपका इनकम जो है वो अगर मीट्रिक डाटा है, यू हैव टू कन्वर्ट इनटू नॉन मीट्रिक, यू हैव टू ट्रांसफॉर्म इट। तो ये आप रीकोड करके डाटा को यू कैन कन्वर्ट इट इनटू नॉन मीट्रिक डाटा, ठीक है। मीट्रिक से नॉन मीट्रिक बनाया मैंने, नॉन मीट्रिक से मीट्रिक तो बन ही नहीं सकता, मैंने पहले ही बताया। यू कांट convert your ordinal data into ratio, you can't convert into your nominal data into ratio, but you can convert in the opposite way, that you can convert your ratio data into interval, ratio data into ordinal. तो ये मैंने उसी की एग्जांपल दी है कि how you can convert your ratio data into ordinal data. Clear? Okay, ma'am. ठीक है, इतना आई थिंक क्लियर हो गया। ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स है। अब यहाँ तक अगर कोई क्वेरीज हैं, कोई डाउट्स हैं, तो वो आप पूछ लीजिए। अगर कोई डाउट्स हैं, किसी को कुछ नहीं क्लियर हुआ, तो आप पूछ सकते हैं। मैम डाउट तो अभी कुछ है नहीं, लेकिन हम एक बार हमारे लैपटॉप के जरिए करेंगे, और कुछ लगेगा तो मैं हम डेफिनेटली क्योंकि हमारे को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मैम, एक बार करेंगे। डेफिनेटली तो मैंने पहले ही तभी पूछा कि SPSS इंस्टॉल्ड है या नहीं, क्योंकि वर्कशॉप का सक्सेस अगर आप चाहते हो कि आपको कुछ समझ में आए, तो तभी आएगा अगर आपके पास SPSS इंस्टॉल्ड है। एंड यू रादर जब मैं टेस्ट करवाऊंगी, यू शुड परफॉर्म इट साइड बाय साइड, ताकि आपको वो क्लैरिटी ज़्यादा होती जाए। यस मैम। ठीक है। अब ये जो Z ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या होती है, आप किसी भी सीरीज को नॉर्मल जो है वेरिएट में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो वो भी आप कन्वर्ट कर सकते हो नॉर्मल वेरिएट में। एनालाइज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे जाके ये सेव स्टैंडर्ड वैल्यूज एज वेरिएबल। मान लो ये आपके मार्क्स हैं, मैं इसकी स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यूज सेव करना चाहती हूँ, ओके कर दीजिए। यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव्स भी निकाल सकते हो जो चाहते हो, मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस, रेंज, जो भी आप चाहते हो, वो इस कर्टोसिस, क्यूनस, कोई भी डिस्क्रिप्टिव आपके यहाँ से
आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, ये आपके आउटपुट फाइल में सारे के सारे डिस्क्रिप्टिव्स आ गए जो आपको चाहिए। रेंज, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सीरीज, स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस, स्क्यूनेस, कर्टोसिस, और जो मैंने आपको स्टैंडर्डाइज वैल्यूज कही हैं वो ये आपकी सेव। ये देखिए जेड एग्जाम्स, स्टैंडर्डाइज वैल्यूज निकालनी आती है ना, ये इस तरह से जेड का फॉर्मूला होता है, एक्स माइनस एक्स बार ओवर स्टैंडर्ड डिविएशन। ये वो स्टैंडर्डाइज वैल्यू सारी की सारी। क्लियर? हाँ जी, क्लियर है इतना? यस मैडम, क्लियर है। ओके मैम, ओके। तो आज यहाँ पे वाइंड अप करते हैं हम। पहले आप Yes, इतना पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद कल जो है हम कोरिलेशन और काई स्क्वायर पे शिफ्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच मैम। Thank you, ma'am.